Yes, so good evening, everyone. Those who have joined today for the first time, I am Evening. Priya Dubey, and we are doing a book reading for this book, The Magic by Rhonda Byrne. It's a book about turning our desires and dreams into reality. And there's a very simple way of doing that, okay? Just by being positive, by thinking about what we already have, by being grateful for that, we will attract whatever we want in our life, okay? So, those of you who are new, I'm sure you'll be very interested in how people who have been practicing gratitude, how they have achieved a few things and how they have changed their lives around. Okay, so someone please volunteer. Those who have been in practice, please inspire the newcomers and inspire them to continue this journey. Yeah. Yes. Yes, Kavita Good ji. evening, Yeah, please everyone. introduce yourself and tell us. Yes. Yeah. Yes. Hmm. Myself, Dr. Kavita. I'm practicing in Mumbai with Tia Clinic as a trichologist and cosmetologist. Wow. One more dream of mine has come true. That is, I wanted to learn hair transplant, and I'm into that process. I'm teaching people hair transplant as well, doctors, MBBS, BDS, and all. As well, I am doing the things. I'm supervising also. 28 years back, once only I had, yeah, in internship, I had learned how to give injections and all. But after that, till date, मैंने कभी injection को हाथ नहीं लगाया था. But today I am fantastically doing PRPs, platelet-rich plasma on patients' scalp, on face, on pain areas. These all things. And so this was my dream that I wanted to get it done, as I wanted to switch my job last in 2 sessions back. I have told you, Yes. and that has come true, and I'm doing fantastic in that. Hmm. I'm going to different places. I had been to Chennai for 10 days to train people for hair transplant, Okay. from my clinic only. We have our branch over there, Okay. and next year we are planning Dubai. So again, that is one of my dream. Okay, so Kavita ji, just one question. How have you been doing this? You have told me what you have achieved, but how have you done it? Yes, I'm sure people yes, are more interested in that. Were you writing your dreams? yes. Were you doing gratitude? So you please share that with us, okay? Yes, yes, yes. So you need a vision. Okay. Abhi, I keep on traveling here and there, so I can't make my vision board till date. Hmm. But continuously, what I wanted, I Hmm. go on reading on daily basis and I write that. When I Oh. write, I read it loudly because it becomes 3 times. Like when you write, you're looking, you're Hmm. reading in your mind, and Hmm. when you're loudly reading, it is third time again. So 3 times, one time you're 3 time reading the same, Okay, so so you it have gets written, fit. yeah, so you have written what you want, just like the book is Yes, telling us. You have yes, written that, and now in you are detail. reading it and listening to it. Okay, wonderful, Yes, wonderful. yes. And you have been practicing gratitude for how long? Since 1.5 year with you. Okay, okay, yes, thank you. And you are seeing all these changes apart from your career. How are you feeling, with your relationships, with your finances? How are you feeling? Small, small daily life It's incidents. fantastic. Even one of my dream came true recently. Before 1.5 year, since 1.5 year, I was tracking the thing. I gave one kind of earring to get it done in diamond. Since 1.5 year, my jeweler was not able to do it. Finally, he got it done from Mumbai because 3 times he told the design to be done in that manner, and no one can make it. It's very simple, which I'm wearing, a telephone like one. And Okay, now he has got it done, and yesterday he sent me the photographs of the same. So it was wonderful, Kavita yesterday's ji. first Huh. session, and Huh, I huh, got huh. one more dream come true. Wow, wonderful, wonderful, Kavita ji. I'm so grateful that you're sharing your, Yes, experiences, your magic, and I'm definitely sure people are getting inspired to write their yes. dreams, follow what they want, and do the gratitude practice. Thank you so much, Kavita ji. Thank Someone else you. wants to share? Thank you so much. Someone else wants to share how gratitude has changed their lives, brought positivity, or made your dreams come true. I will definitely share, but I want someone who has been practicing for some time to share what they have felt. I'll Hello, share. Priya. हाँ यस अदिति जी या बिल्कुल बताइए हाउ आर यू Actually, I have practiced that for I think 3-4 months back, या and after that I have found changes in myself. I used to be too much in depression, but after practicing gratitude, I started smiling. I started feeling positivity coming to me. My dreams have not yet come true, to be very frank. But yeah, I find that yeah, I have got a peace of mind.
Hmm. That's the best part for me, because that I have got some peace of mind. Hmm. So yes, practicing gratitude has done a lot of things for me, because that was a major goal for me, to have peace Hmm. of mind. Okay, wonderful. And I'm sure your dreams will come true because it depends, how much gratitude we are doing. Okay, suppose I want a car. Okay, but I've just started saving money. So I can't say I've got my car, I've got enough money to buy my car. I have to save the amount to buy that car. Only then I can buy that car. Okay, so we have to No. collect that much blessings. We have Yes. to do that much gratitude to get our dreams to us. Okay, so thank you, Aditi ji. Keep practicing gratitude. And they say if you're practicing gratitude little, yesterday only we read that. If you're practicing gratitude little, the magic will be little. If you're practicing gratitude more, the abundance that you attract will be more. Okay, so we will learn how we have to practice gratitude and attract No, abundance. it has really changed my life. Practicing gratitude has really given me a peace of mind. I started smiling after a long time. A true smile, to be very frank. Not a नकली वाला हंसी नहीं है, असली वाली हंसी आने लगी है चेहरे पे. So yeah, it Okay, has. wonderful. And I remember Aditi ji, जब आप first time join किए थे, you were a different person. I think you started with Secret, if I am not mistaken. Yes, Secret या Power से आपने yeah, join किया था, yes. the secret And has the way started. you were sharing, the way you are interacting has changed a lot. Thank you, and I'm sure आपके बहुत सारे life में positivity and magic attract होने वाला है. Okay, Thank so you. thank you. We will take some more sharing. So first tell me, आज आपने कितने लोगों को thank you बोला? Yes, tell me. आपने जानबूझ के ध्यान करके बोला. आज का ये टास्क था ना, मैजिक फॉर्मूला. हम्म. या Yes. Yes, मैंने very good. बोला. मेरा Very बिग good. बास्केट के से सामान आया. आई थैंक हिम वेरी मच. एंड वन फेलो केम फ्रॉम द बैंक टू गेट माय सिग्नेचर. उसको भी बहुत बड़ा थैंक यू बोला, बिकॉज आई डिडंट हैव टू गो टू द बैंक. Okay, wow. हाँ, very good. हाँ, दैट्स इट. वेरी गुड कला जी. और भी आप देखिए, जिससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, जस्ट रीजन देख के करने से अच्छा रहेगा. ठीक है. या अच्छा, अगर हम किसी को लगता है कि हम लैंग्वेज में कुछ इशू है तो आप बोलिएगा, हम ट्राई करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ओके, एनीथिंग इफ यू फील कि कुछ इधर उधर है, आई एम दिस एन इंटरैक्टिव सेशन. आपको जो इशू लगेगा आप हमसे शेयर करिए एंड वील डू दैट. ओके, क्योंकि क्या है, जितना हम समझेंगे, जितना अच्छे से उसको फॉलो करेंगे, उतना अच्छे से आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. ओके, सो थैंक यू. एंड एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन? अच्छा, पहले बताइए, आपने जो अपनी लिस्ट बनाई थी सामान की, आपको क्या चाहिए? सामान हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लिस्ट हम लोग जनरली सामान की बनाते हैं, है ना. इसके पहले आपने कभी सोचा कि आपको क्या चाहिए? आपको अपने लिए क्या चाहिए? आपने कभी इसके पहले लिस्ट बनाई थी? हमने नहीं बनाई थी. जब हमने ये फर्स्ट टाइम मैजिक बुक की थी, आई डन इट ऑन माई ओन, आई रेड इट. हमने कोई इंटरैक्टिव सेशन नहीं किया था. फिर जब मे बी आई थिंक हम बीच में चले गए थे थोड़ा, मे बी 18-20 चैप्टर पे पहुंच गए थे, तब मेरी फ्रेंड ने शुरू किया था. फिर हमने उसके संग इंटरैक्ट किया. तब हमको लगा नहीं, ड्रीम लिस्ट तो बनानी बहुत ज़रूरी है. बीच में एक चैप्टर आता है, वो हमको बोलता है कि नहीं, अब लिस्ट जो बनाई है उसका करना क्या है. ओके, इट्स लाइक आप मॉल जा रहे हो, हाँ, आप सुपर मार्केट जाते हैं, आप जब लिस्ट बनाएंगे तभी तो आप प्रॉपर सामान लेके आएंगे. वरना आपके संग ऐसा हुआ होगा ना, आप गए हैं, हाँ, सामान की लिस्ट के बिना आप गए, तो क्या होता है, जो चीज़ें वो लोग अच्छे से हमारे लिए अट्रैक्टिवली सजा के रखते हैं वो आप ले आते हो. और जो एक्चुअल में आपको चाहिए होता है वो कितने बार आप भूल जाते हैं. आपके संग ऐसा हुआ है? मेरे संग तो बहुत हुआ है. माई मॉम यूज टू सेंड मी सामान लाने के लिए, एंड आई वुड गेट अट्रैक्टेड बाय द चिप्स, बाय द चॉकलेट्स, कुछ न्यू इंस्टेंट मैगी पैकेट या सम इंस्टेंट चीज़ आती थी, वो ले आते थे हम. और जो मेन आइटम्स रहते थे ना, जो हमको इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे, वो छूट जाते थे. ठीक है, आई वुड गेट इंस्टेंट कोको मिक्स एंड ये सब ले आते थे. तो वैसे ही लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप अपनी वाइफ को, अपनी मम्मा को, अपने पापा को बोलोगे ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, तो आपको कैसे गिफ्ट मिलते हैं? बर्थडे में, एनिवर्सरी में कैसे मिलते हैं? मिलते हैं, लेकिन आपको लगता है अरे ये कलर क्यों है, वो कलर क्यों नहीं लाए. ठीक है, मुझे तो वो कलर पसंद है ना. तो अगर आप पहले से ही बोल दोगे कि मुझे ये चाहिए, तो फिर वही गिफ्ट मिलता है. तो आज का ये जो हमने लिस्ट बनाने का हमारा ये प्लान था, वो इसीलिए था कि हमको जो चाहिए वो ही लिस्ट बनाएंगे तो वो ही मिलेगा हमको. ओके, इट इज़ लाइक अमेजोन, कि आपको जो चाहिए आप वही अपने बास्केट में डालेंगे. इतनी सारी चीज़ें हैं, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर देयर. आपको जो चाहिए आप वही डालोगे. इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है. तो समवन प्लीज शेयर कि आपने अभी क्या बनाया, उसमें डाला है, बनाया नहीं मतलब क्या लिस्ट में लिखा है. हेल्थ को लेके लिखा है. सी, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर आप शेयर करोगे तो उसमें कुछ चेंज करना होगा, तो देन आई कैन गाइड यू. ठीक है, कि उसको आप ठीक कैसे कर सकते हो. ओके, कि जैसे आपको सब्जी लेनी है और आप मॉल चले गए, ठीक है, और वहाँ पे हो सकता है स्पेंसर ही नहीं हो, है ना. तो क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उसको थोड़ा सा और हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेंगे.
Okay, so that is why I'm asking. So anyone wants to share? Yeah, I Hello? will. Okay. Yes, please. Yeah. Shall I? Yeah, who was that? Yes, Kala ji, आप बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बताइए. हाँ. See, मैंने first अपना लिखा है, my prime dream is to see my son married to a wonderful, loving, caring girl who can make him happy and they lead a contented and happy life. That was my first. Okay. So the way I have written, is it okay? या अच्छा, देखिए आपने ये तो लिखा है, बट क्या होता है, देखिए ऐसे तो मेरे को ऐसे प्राइमा फेसी मेरे को सब सही लग रहा है, ठीक है, बट आपको कैसे पता कि लविंग का डिग्री क्या है? ठीक है, हो सकता है वो लविंग हो लेकिन आपको नहीं लग रहा हो, तो आपके हिसाब से कैसे लविंग है? हाँ, कि वो लोग बहुत माने अच्छे से बात करते हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, उसको थोड़ा सा आप और स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग सिर्फ उस पर वर्क कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि उसको और अच्छे से कैसे लिखना है, ठीक है। ये तो आप सब कुछ पॉजिटिव है उसमें, एकदम सही है, बट क्योंकि हमको ये देखना है कि लाइक कि एज इफ वो ऑलरेडी हो गया है, नेक्स्ट स्टेप वो होएगा। अभी आप ये लिखिए जो आपने लिखा है कला जी, एकदम सही है, नेक्स्ट स्टेप विल बी एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड, या वो रहेगा। अभी आपको ये लिखना है कि आपको जो चाहिए, सो दैट वे इट इज परफेक्टली फाइन। ओके, या सो थैंक यू। एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन अबाउट आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है? Yeah, I have a question. Yes. Yeah, I thought that we have to write in present tense only, but what I understood just now कि we can write as it is and then we have to write in present. नहीं माधु जी, क्या है, देखिए आप ये सेशन कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस पे लिखना है, लेकिन जो न्यू है अभी हमको पता ही नहीं है कि हमको चाहिए क्या, है ना। तो अभी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं कि हमको लिस्ट बनानी है कि हमको क्या चाहिए, ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओके, जैसे अगर हमको कैटरपिलर लिखना है तो पहले तो हम ABCD सीखेंगे, फिर प्रॉपरली उसकी स्पेलिंग सीखेंगे, फिर उसको प्रॉपरली लिखेंगे, है ना। तो अभी हमारी फर्स्ट स्टेप ये है कि हमको क्या चाहिए, सो दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर उसको पूरे कैसे फ्रेम करना है, फिर प्रेजेंट टेंस में जाएंगे। दिस इज व्हाट आई जस्ट मेंशन्ड। ओके, इज दैट क्लियर मधु जी? हाँ, आपको क्योंकि पता है तो आप उसको वैसे ही लिख सकते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन द सेशन अर्लियर ऑल्सो। ओके, या ओके, या Thank you. Hi Priya, this is Shivali. I'm a new joinee. यस। Okay, so I will tell about one dream of mine which I have written. So if it is wrong, please correct. Yes, okay. So it is my dream that I want to drive a four-wheeler car. Okay. Okay, so I have written I am driving four-wheeler car. I am traveling and roaming with my friends and families, and I am only driving the car. ओके, तो आपको देखिए क्या उन्होंने बोला है, स्पेसिफिक होना है। 4 व्हीलर तो बहुत सारी कार्स होती हैं, है ना, किस टाइप की कार है, हाँ, उसका कलर कैसा है, उसमें AC ऑन है कि नहीं है, उसमें आप म्यूजिक चला रहे हो कि नहीं, किस किस जन के संग आप बैठे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, मौसम कैसा है, इट्स लाइक जितना डिटेल्स आप दोगे। जैसे कल का वो एग्जाम्पल था ना, उन्होंने कहा था कि आप अगर हॉलीडे पे भी जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, किसके संग जा रहे हो, क्या पहने हुए हो, है ना, आपका घर के बारे में लिख रहे हो तो कितने कमरे हैं, कैसे डेकोरेटेड है, हाँ, कौन कौन उसमें रहता है, वैसे ही। तो जब आप कार के बारे में लिख रहे हो तो आपका बाकी सब कुछ ठीक है, बट जो आपको चाहिए कौन सी कार है, उसको आपको थोड़ा और अच्छे से इलैबोरेट करके उसमें लिखना होगा। ओके, Okay, thank you. या थैंक यू, थैंक यू। इट इज एनीवन एल्स? Ma'am, yes, I can. यस, हु वाज दैट? मैम सीमा गर्ग। हाँ, न्यू बोलिए। आपके सेशन में न्यू हूँ। वैसे मैं मैजिक सेशन 2 बार अटेंड कर चुकी हूँ। ओके, हाँ, मैम एक तो मैं हेल्थ के बारे में मैंने लिखा है कि मैं फिजिकली बहुत फिट होना चाहती हूँ, ओके, मेंटली भी और फिजिकली भी, लेकिन फिजिकली ज़्यादा मेरे को ज़रूरत है। हाँ, ओके, और हाँ जी मैम। हाँ, तो हम कह रहे थे फिजिकली फिट, मतलब देखिए हर जन का फिजिकली फिट अलग अलग होता है ना। Yes, जो yes, एक पर्सन बहुत वीक है हमेशा से, उसके लिए Yes. फिजिकली फिट यही हो सकता है कि चलो हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ के फर्स्ट फ्लोर तक चले जाएं, है Yes, ना। ma'am. और Yes, एक जन जो खुद ही बहुत एक्टिव है, वो रोज दिन में 4 तल्ला चढ़ता है, 4 फ्लोर्स चढ़ता है, Yes, उसके ma'am. लिए फिजिकली फिट हो सकता है कि वो एक मैराथन रन करे, स्विमिंग के Yes, इतने लैप्स करे, ठीक है। तो आपके हिसाब से फिजिकली फिट मतलब क्या होता है ना। इट्स लाइक आप रेस्टोरेंट गए, आप उसको बोलो एक अच्छी चीज ले आओ, हो सकता है Yes, वो नॉनवेज पर्सन हो, अच्छी चीज मतलब उसके लिए बिरयानी हो, नॉनवेज बिरयानी, और आप एकदम शुद्ध शाकाहारी जैनी हो, है ना, आपके लिए वो अच्छी चीज Yes, नहीं है। ma'am. तो Yes, कैसे ma'am. फिजिकली फिट है, आपको वो अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। ओके, इट्स Ma'am, लाइक for example,
फॉर एग्जाम्पल मैम, हम्म फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या मैंने आपके हिसाब से फिजिकली फिट क्या है कि आप चाहते हो कि आप इतना केजी का डंबल उठा के कर लो एक्सरसाइज, या आप चाहते हो कि दिन भर आप शॉपिंग कर रहे हो, आप एकदम थके नहीं हो, एकदम फ्रेश फील कर रहे हो, वो है। तो आपका डेफिनेशन आपके पास ही होगा, मेरे बोलने से नहीं होगा। मेरे बोलने से तो होगा कि हम चाहते हैं कि हम 1000 स्किपिंग एट अ स्ट्रेच करें, ठीक है, वो मेरा लेवल हो गया फिजिकली फिट का, ठीक है। कि रोज हम 7 किलोमीटर रनिंग करें, वो मेरा लेवल हो गया, ठीक है। हो सकता है आपका फिजिकली फिट कुछ और हो। तो तो ये विश लिस्ट में लिखना है मैम इतनी डिटेल में? विश लिस्ट में लिखना है आपको, यस। ओके, ओके, तो न्यू बनाएंगे, हाँ एक न्यू न्यू बनाना है, बनाएंगे। बिल्कुल। अगर आपकी और पहले मैम, से बनी हुई है, आपने कहा आप 2 बार कर चुके हो, पहले से बनी हुई है, तो आप उसमें से देख लो। हो सकता है ना उनका मन बदल जाता है कि हाँ पहले यस मेरे को मैम, रेड स्वेटर चाहिए था, अब रेड का फैशन चला गया, अब मेरे को ब्लैक चाहिए, तो आप यस उसको मैम, चेंज कर सकते हो। ओके, यस मैम। या और रिलेशन में मैम, मैं चाह रही हूँ कि मेरे एक तो सोशल बहुत अच्छे रिलेशन हो, हाँ, और मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो, हम्म बहुत ज़्यादा। और बच्चों के लिए मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन और हम्म गुड ह्यूमन हम्म ह्यूमन बीइंग बने। ओके, उसमें भी और आपको मेरी डिटेल लिखना होगा सीमा जी, अभी हम आपको बीच में बता रहे हैं। गुड रिलेशनशिप मतलब क्या? हस्बैंड से अच्छा रिलेशन मतलब आप चाहते हो वो रोज आपके संग बैठ के डिनर करे, या आप चाहते हो वो रोज यस आपके मैम, संग, रोज नहीं तो चलिए वीकली घूमने जाए, हाँ, हर महीने में कहीं आप लोग वीकेंड ट्रिप पे जाओ, तो क्या कैसे वो अच्छा हो, वो आपको लिखना है। बच्चे गुड ह्यूमन बीइंग मतलब किस हिसाब से अच्छे ह्यूमन बीइंग है, वो सबसे अच्छे से बात करें कि अच्छे मार्क्स लेके आए, वो आपको यस उसमें मैम, स्पेसिफाई करना होगा। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, आपको जो भी चाहिए वो आपको और स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है। ओके, या ओके, सो थैंक यू एवरीवन, एंड नाउ वी विल थैंक टेक यू। द क्वेश्चंस आफ्टर द रीडिंग। तो हमारा एक ये प्रोसेस होता है, हम लोग प्रोसेस नहीं मतलब लाइक हमने ऐसे कुछ किया है, व्हेन वी स्टार्ट द सेशन, यस, हमारी एक दूसरी फ्रीक्वेंसी से हम लोग आते हैं। दिन भर काम वाम करके हम लोग आए हुए हैं, इसकी बातें उसकी बातें, अब जब सेशन में आए तो सेशन वाली फीलिंग आनी चाहिए ना थोड़ी, हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, कविता जी प्लीज प्लीज टेल अस। We tell 10 little fingers, 10 little feet, 2 little ears, and 1 10 little little nose. toes, I don't want 10 Toes, feet. toes, sorry. 10 little fingers, 10 little toes, Yes, 2 little ears, and 1 little nose. yes, where is our अथर्व? आज अथर्व नहीं आया क्या? Yes. तो क्या करना है हम लोग को, we do it a little fast, we have to Atharva change. is there, but yesterday you didn't do, so he went crying down. Oh, I'm so sorry, I saw him and I thought But he कल is भाई, sitting there. ओके Good. वंडरफुल। तो हम लोग क्या करते हैं, वी चेंज द एनर्जी, जो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी, उसको थोड़ा सा एनर्जी शेक करके डू इट अ लिटिल फ्रेश। जस्ट 1 सेकेंड, आई म्यूट एवरीवन, देन वी कैन स्टार्ट। ओके, तो क्या करते हैं, आई जस्ट डू इट वंस, कविता जी ने शेयर किया ही है। वी डू लाइक दिस, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Okay, we do like this and everyone has to say it aloud. Okay, अपना कैमरा ऑन करके जितने जल्दी जल्दी आप ऐसे ऐसे शेक करके करोगे उतना अच्छा है। वी स्टार्ट द रीडिंग एंड द सेशन लाइक दिस एवरी डे। ओके, सो आई कैन सी अनदर किड शिवाजी ऑल्सो हियर, जिसके भी बच्चे हैं सबको ले आइए, उन लोग को भी मजा आएगा। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग सब लोग करते हैं, आप बिल्कुल करिए। ओके, इट्स अमेजिंग, यू विल फील वंडरफुल, ठीक है। यस, सो 1 2 3 स्टार्ट। 10 little 10 fingers, little fingers, 10 10 little little toes, toes, 1 1 little, little 10 ear, little 1 fingers, little 2 little ears, 10 little fingers, 2 little 10 ears little and toes, 1 2 little little nose। ears, यस, 1 little वंडरफुल nose. वंडरफुल। तो देखिए, आज जो आप लोग थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, नहीं, उसको और एनर्जी से करना है। जैसे नहीं, अगर आपको लगता है सॉन्ग चेंज करना है हम लोग को, तो हम लोग सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, जैसे तेरे मेरे प्यार के चर्चे टाइप्स, बट आई फील दिस इज क्यूट। तो इससे आप एनर्जी दूसरी लगने लगेगी। ओके, बट वी हैव टू कीप ऑन डूइंग टू अंडरस्टैंड इट लिटिल वेल। यस, तो हम सब ने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली है, एंड आज का जो चैप्टर है वो है डे 1। कल था हमारा फाउंडेशन, इंट्रोडक्शन, जो भी आप बोलिए, वो डे था। आज से डे 1 है। आज की जो प्रैक्टिसेस हम लोग की स्टार्ट होने वाली हैं, दैट आर द थिंग्स विच विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग योर ड्रीम्स टू यू, ठीक है। सेकेंडली सॉरी, आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देना है कि आप दिन भर में क्या बात कर रहे हो, कितने बार आपने थैंक यू बोला है, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। आप सबने वो सीक्रेट मूवी देखी है, हमने कम से कम आई थिंक इस बार तो आई थिंक 15-20 टाइम्स हमने शेयर कर ली होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एवरीवन। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको वो देखनी ही है। बेस्ट होता है आप पूरी मूवी एक संग देखिए। अगर नहीं देख पा रहे हैं, 1.5 घंटे की मूवी है, आप उसको ब्रेक कर करके, लेकिन आपको देखना ही है वो। इन 28 डेज में
ऐसे तो आपको अभी तक देख लेनी चाहिए थी, आपको नहीं टाइम मिला है, कोई बात नहीं, आप टाइम निकाल के 15 मिनट 20 मिनट डेली उसको देखना है आपको, ओके, सो दैट यू कंप्लीट द मूवी, दैट इज द इंटेंशन, ओके। उसमें बोला गया है कि फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट। कल भी ये लाइन थी कि हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स ही वो चीज़ हैं जो हमारी ड्रीम लाइफ को हमारे तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ओके। इसके पीछे एक साइंस है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ओके। सो हु वांट्स टू रीड टुडे? I will read. Can I? Can I? I think who said first? Deepak, you said first or Rupali? I think I- Deepak, yes, yeah. So yes, so Rupali ji, कल आप पढ़ लीजिएगा. That was you, I'm sure, ना? आपने कहा था? Yes. I'll read tomorrow. Okay, yeah. So I'll share the I'll screen. read day after. अच्छा देखिए, ऐसे यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? वो पहले उसी दिन बोलना होगा. I can't keep track कि किसने परसों कहा था, किसने कहा था. Okay. जिस दिन Alright. क्या है, उसी दिन आपको बोलना पड़ेगा. Okay, रूपाली जी, sorry, कल आप फिर से बोल दीजिएगा. Okay. Yes. Yes, Deepak? Priya ji. Yeah, okay, thank you. And yes, Deepak ji, can you see the screen? Everyone can see the screen? Yes, I can see the screen. From where do I have to read? Count your from here. Yeah, day 1, count your blessings. day 1. Count your blessings. Right. Yeah. So today is day 1 and we are doing count the blessings. अच्छा, सब लोग बताइए कि blessings होता क्या है आपके हिसाब से? Blessings. You can write in the chat if you want, or you can, unmute and tell us. प्रिया जी 2 सेंटेंस बोलना चाहती हूँ. Yes, नीलम जी. थैंक यू बोलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है. एकदम. थैंक यू बोलने का कोई निश्चित समय नहीं होता. प्रिया जी, यह हमने सीखा नहीं था यदि आपने बताया ना होता. So sweet, नीलम जी. Awesome. I missed you, Neelam ji. Seriously, I missed you in the previous sessions. Thank you so much. I'm so happy to see you. सच्ची में ये सब हम सब सीख रहे हैं and Rhonda Byrne ने हमको इतने अच्छे से सिखाया है. Okay, so thank you so much, Neelam ji. Yeah, thank you. Yes. So yes, Tarini is right. आशीर्वाद होता है blessings का मतलब. Blessings is anything and everything that's positive in your life. Very true. But क्या हम ये समझ पा रहे हैं? Okay, कि blessings सब कुछ जो positive है, क्या हम उसको देख पाते हैं? Yeah. Anyone else who wants to share what is a blessing? Our house, our family, our food, everything is a blessing of God. We have been blessed with all this, which we don't realize at times. Whatever gives us happiness and comfort, peace of mind. Yes, very The good. blessing. Yes. Yeah, वो सब blessing है. तो अब देखते हैं कि कुछ चीजें हम लोग taken for granted ले लेते हैं. They are also blessings for us. Yes, ये भी बात सही है. हम लोग तो बहुत सारी चीजों को taken for granted लेते हैं और वो ज्यादातर वो blessings ही होती हैं. अब हम लोग देखते हैं कि रोंडा बर्न क्या कह रही हैं कि count your blessings, माने बस इतनी है कि हम लोग 10 या मे बी मैक्सिमम कितने 30 या 40 आप चीजें काउंट कर पाते हो अपने फिंगर्स पे, क्या उतनी ही है या इतनी है और आपको उनकी काउंटिंग करनी है? हमको क्या लगता है, कैसे लगता है? लेट्स फाइंड आउट. सो लेट्स फर्स्ट सी द पिक्चर. यहाँ पे आप देखिए, ये ऑफ कोर्स ये विंडो है, डे लाइट लग रही है, बाहर आपको ट्री दिख रहा है, ये एक ठो. हाँ, यहाँ पे कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ टी, या आपको लगता है कि कप ऑफ मिल्क है, वो रखा हुआ है. हाँ, एक लाइट रखी है, एंटीक सी लैम्प रखा हुआ है, प्लांट रखा, सॉरी रोजेस रखे हुए हैं ग्लास में या वेज में, और एक डायरी रखी है और एक पेन रखा हुआ है. ओके, आप देखिए कितना एंटीक सा जर्नल इसका, ये ऐसे फ्लैप क्लोज होता है. वी कैन ट्राई एंड गेस यहाँ पे ये क्या रखा हुआ है. इट कुड बी अ रेडियो, आई डोंट नो. हाँ, और आप देखिए यहाँ, I would like, blessing is actually the realization of what we have. This is basically a gratitude. Blessing gratitude है, जो भी positive सब कुछ हमारे पास है, accumulated. We are walking properly, we have proper legs, everything falls into blessing. So blessing is basically a realization of how well we are, in good shape we are. Yes, very good, very nice. एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. बट क्या हम लोग उसके लिए रोज ग्रेटफुल होते हैं? ब्लेसिंग्स तो हम समझ गए. रोंडा बर्न ने हमसे कहा ना कि जिसके लिए अपन ग्रेटफुल होंगे वो ही हमारे लाइफ में बढ़ता जाएगा.
है ना. Whoever has will be given more, whoever does not have, he or she, it will be taken from him or her, है ना. यही बोला उन्होंने. तो जो चीज़ हमारे पास है, जिसको हम एक्चुअल में ब्लेसिंग समझते हैं, तो हमको फर्स्ट उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा. जब हम ग्रेटफुल होंगे तब हमारे लाइफ में वैसे सिचुएशंस, वैसी सर्कमस्टांसेस आएंगी ताकि हम और ग्रेटफुल हों. हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ती जाए और हम भगवान जी को थैंक यू करते जाएं, है ना. जैसे होता है ना, बेबी बॉर्न होता है तो हम लोग मिठाई बांटते हैं, है ना. क्या कर रहे हैं आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप खुशियाँ बांट रहे हो. तो वैसे ही और खुशी खुशी के मौके आए, आप और मिठाइयाँ बांटो. इट्स लाइक दैट. अच्छा, खाना खाएगा क्या? हाँ, कई जन खा चुके हैं. थैंक यू. यस. तो आप देखिए, यहाँ पे रॉन्डा बहन हमको यही बता रही है कि आप सुबह सुबह, मतलब आपको कुछ लिखने का कल से हमको ये प्रैक्टिस होने वाली है. ठीक है. एवरी मॉर्निंग वी हैव टू डू दिस. मॉर्निंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये डे लाइट है. ओके. इट कुड बी एज अर्ली एज यू गेट अप. इट हैज़ टू बी एज अर्ली एज यू गेट अप. आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, तब आपको लिखना है. आप 8 बजे, 9 बजे, जब आप उठते हैं तब आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है. ओके. सो लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग. यस दीपक जी, प्लीज स्टार्ट. Please unmute. I had to mute because Sorry. Yeah. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, B, 1933. Singer, songwriter, right? Yes. So he's saying, when I started counting my blessings, my whole life turned around. You'll have heard people say to count your blessings. Just one second. How we read is like, आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे, देन विल टेक अ पॉज. हम थोड़ा सा उसको डिटेल में वी विल टॉक अबाउट इट एंड देन यू विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पैराग्राफ. ओके. या. सो नाउ द सिंगर इज टेलिंग अस, व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, माय होल लाइफ टर्न्ड अराउंड. या. तो जब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को देखना शुरू किया, जिस चीज़ को आप देखोगे आप उसी को काउंट करोगे, है ना. वरना तो नहीं करेंगे. इट्स लाइक जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है. तो जब उन्होंने कहा, जब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को ऑब्जर्व करना, काउंट करना शुरू किया, उनकी पूरी लाइफ टर्न अराउंड हो गई. टर्न अराउंड मतलब पहले जो मे बी शायद डोल्ड्रम्स में होगी वो बहुत अच्छी हो गई. पहले जो थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं थी, अब एकदम सुपर अमेजिंग हो गई. टर्न अराउंड मतलब यही होता है ना कि लाइक फुल चेंज आ गया उसके अंदर. हाँ, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट नहीं, इट्स लाइक टर्न अराउंड हो गया पूरा. तो अब हम लोग भी यही करने वाले हैं और आज का प्रैक्टिस वो बिल्कुल यही है, काउंट योर ब्लेसिंग्स. तो हमारी लाइफ भी क्या ऐसे ही चेंज हो जाएगी? हाँ, डिपेंड करेगा. उन्होंने कहा है ना, जितनी फीलिंग से आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, आप मैजिक्स आना स्टार्ट होंगे. या प्लीज रीड. Right. So you'll hear people to say, you will hear people say to count your blessings. And when you think about things you're grateful for, that's exactly what you're doing. But what you may not have realized is that counting your blessing is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. या आपने बचपन से ये बातें सुनी होंगी. हाँ, कि कभी आपको चोट लग गई तो बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस कुछ नहीं हुआ. हाँ, थोड़ी सी तो चोट लगी है, वरना देखो बच गए तुम. ऐसा हम लोग ने सुना है. एग्जाम्स में गंदे मार्क आए तो भी मम्मी पापा लोग यही बोलते थे, कोई बात नहीं बेटा, पास तो तुम हो गए ना. हाँ, फेल तो नहीं हुए. तब लगता था बताओ, फेल पास की बात कर रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं इतना टॉपर जैसे मार्क्स आने चाहिए, वो कह रहे हैं चलो फेल तो नहीं हुए. तो ऐसा आपने कभी सोचा कि जब आपको ऐसा बोला जाता था वो आपको यही कह रहे होते थे, ठीक है, कि तुम तो जो भी तुम्हारे संग हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, वो तो ये ब्लेसिंग है. हाँ, इसके पहले आपने कभी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा होगा. हाँ, किसी को चोट लगती है, आपने भी कितने बार बोला होगा, हाँ, कोई बात नहीं, चलो. किसी का ब्रेकअप हुआ है तो आप उसको ऐसे ही बोलते हो ना कि कोई बात नहीं, तुमको और अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी, तुमको और अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा. आपने ऐसे ही बोला होगा. कि ये बोला नहीं नहीं बहुत बुरा हुआ तुम्हारे संग, उसको तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, या ऐसे बोला है आपने. यही तो बोले ना, हम लोग भी जब किसी और को समझाते हैं तो हम लोग उसको यही बोलते हैं, और अच्छा तुमको मिलेगा, और अच्छा जॉब मिलेगा, कोई बात नहीं इस बार प्रमोशन नहीं हुआ, तुमको उससे भी अच्छा जॉब मिलने वाला है. हम लोग बोलते हैं ना ऐसे. कोई फ्रेंड का या बच्चे का कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है या उसके मार्क्स थोड़े कम आते हैं, हम लोग उसको ऐसे ही एनकरेज करते हैं. उस समय हम लोग उसको उसकी उसी ब्लेसिंग्स के बारे में बता रहे होते अननोइंगली. तो रॉन्डा बर्न भी हमसे यही कह रही हैं कि हम लोग अननोइंगली अपनी ब्लेसिंग्स को जनरली ओवरलुक कर देते हैं. ठीक है, हम लोग समझते ही नहीं हैं कि ये ब्लेसिंग्स है हमारी लाइफ में. तो जब हम उस सिचुएशन में, हर सिचुएशन में ब्लेसिंग्स देखने लगेंगे, ब्लेसिंग्स को ऑब्जर्व करने लगेंगे, उनके लिए ग्रेटफुल होने लगेंगे, तब जाके हमारी लाइफ में वो टर्न अराउंड आएगा. ओके, या प्लीज रीड. Yeah, thank you. When you're grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase.
If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously getting better, I guess. Yeah. Could you please turn around the page? Yeah, I've done that. Yeah, get even better. Better. Yes. You're grateful for the job that you have, even if it's not your dream job. Things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. Yes, तो आपने देखा होगा कभी ऐसा होता ना कि इसमें बहुत अच्छे वीडियोस हैं, आपने डेफिनेटली देखे होंगे। अब आप हम शेयर करेंगे ग्रुप में, अब आप उसको देखिएगा, आपको लगेगा कि यस कितना अच्छा ये, स्पेशली वो वाला आपने हमने वो बचपन में वो स्टोरी पढ़ी है कि एक राजा था, हाँ क्या बोलते हैं, उसके पास इतने कुछ चीजें रहती हैं, हाँ वो अपने शूज के बारे में सोच रहा होता है, ठीक है, फिर वो एक आदमी देखता है जिसके पास पैर ही नहीं होते हैं। यू हैव सीन दैट, यू हैव हर्ड दिस स्टोरी, हाँ तब ये तो बचपन में उन्होंने आई थिंक सबने ही स्कूल में पढ़ी थी, हाँ कि इट्स लाइक समवन हु इज क्राइंग अबाउट शूज, हाँ वो सोचता ही नहीं है कि शूज पहनने के लिए उसके पास पैर तो हैं, हाँ कोई एक इंसान जिसके पास पैर ही नहीं है वो क्या सोच रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक whatever you have, whatever we have, the moment we are grateful for that, however little it is, okay। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था, कितने जनों का जॉब चला गया था, कितने जन के बिजनेस का स्टॉप हो गया था, हाँ और उसी समय आप देखिए कितने जन का फिर भी वर्क फ्रॉम होम में भी प्रमोशन हुआ, उनको बोनस भी मिला, या कितने जन ने न्यू जॉब स्टार्ट कर लिए, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लिए। तो ये क्यों हो रहा था कि क्योंकि उनके पास जो भी था वो उसके लिए ग्रेटफुल थे। दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज टेलिंग अस कि हमारे पास जो है अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, हम खुश रहते हैं, तो वो और बढ़ता चला जाता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती चली जाती हैं, ठीक है। तो हमको हमारी सिचुएशन में यही करना है। इट्स लाइक इफ आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, इफ आई हैव अ स्मॉल प्रोजेक्ट, ओके एंड आई से इससे क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा, हाँ 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ये क्या छोटा सा प्रोजेक्ट से मेरे को फायदा होएगा, कैसे सैलरी निकलेगी, कैसे रेंट होएगा। इफ आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, देन व्हाट एम आई डूइंग, आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट वन ब्लेसिंग दैट आई हैव गॉट। तो क्या होगा, वो जॉब मेरा अच्छे से नहीं होगा, मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, आई एम ग्रम्पी एंड आई एम कंप्लेनिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, इसका काम भी हम अच्छे से नहीं करेंगे तो मेरे को न्यू काम भी नहीं मिलेंगे। इसके बजाय अगर हम उसी प्रोजेक्ट में एकदम दिल लगा के, मन लगा के अच्छे से काम करें, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम थैंक यू भगवान जी, एटलीस्ट एक काम तो आया मेरे पास। इफ आई एम सेइंग लाइक दिस, देन आई एम अट्रैक्टिंग मोर थिंग्स। व्हाई? क्योंकि हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव फीलिंग में रह के और चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिकली अपने पास, ओके। सो दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस कि जितना ज़्यादा हम जो भी हमारे पास है, चाहे जितना छोटा हो, अगर हमारे पास पैसे थोड़े हैं तो हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अगर मेरा ड्रीम जॉब अभी मेरे पास नहीं है, जो भी हम जॉब कर रहे हैं हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अगर हम चाहते हैं मेरी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, हाँ तो एटलीस्ट मेरे पास एक रिलेशनशिप है। तो कितने जन होते हैं कि उनकी शादी नहीं होती है, उनके इन लॉज नहीं होते हैं, उनके पास बच्चे नहीं होते हैं अभी, हाँ तो बजाय उनके बारे में कंप्लेन करने के लिए वी हैव टू बी अप्रिशिएटिव, तब वो रिलेशनशिप अच्छा होता है, ओके। या प्लीज रीड। Right. Very, very, very nicely explained by you, Priya ji. The flip side is that when we are not counting our blessings, as she already explained, the flip side is that when we are not counting. Sorry, when we are reading, we'll just read, okay? Usme we'll not add anything, okay? Yeah, sorry, please read. All right. Yeah. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in line, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Yes. तो अब आप देखिए रॉन्डा बर्न हमसे ये जो कह रही हैं कि अगर हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमने देखा है या तो ब्लैक है या तो व्हाइट है ना, यही होता है लाइफ में। आप बोलोगे नहीं ग्रे भी हैं, ब्लैक के इतने सारे शेड्स हैं, ब्लैक डीप ब्लैक है, थोड़ा सा हल्का सा व्हाइट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो ब्लैक है या तो व्हाइट है ना। आपके मन में अगर कुछ है, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, न्यूट्रल लाइन जो होती है वो नहीं होती है यहाँ पे। या तो आपने अप्रिशिएट किया है या तो आपने कंप्लेंट किया है। आप चुप होते तो क्या होता है,
वो नेगेटिव में ही आता है, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट कि उसने हाँ नहीं बोला है तो उसको हाँ ही माना जाएगा, नहीं। अगर हाँ नहीं बोला है तो वो हमेशा ना है, ओके। ज़ीरो कुछ नहीं होता, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके। तो अब जब अपन ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, अपन ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, हम लोग उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अब बोलोगे नहीं हम तो कंप्लेन करते ही नहीं हैं। अब रॉन्डा बर्न ने जो यहाँ पे ये हमको एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्या आप ऐसा नहीं करते हैं? ट्रैफिक के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो, अब बोले नहीं हम कंप्लेन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फैक्ट बोल रहे हैं। वो फैक्ट भी जो है वो कंप्लेंट ही है कि कब से रेड लाइट में खड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस तो सो रहा है ऐसा लग रहा है, देखो कब से उधर की लाइन ग्रीन है। ये सब कंप्लेंट्स हैं। उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा रेड लाइट्स मिलेंगी, आप और ज़्यादा जैम में अटके रहोगे, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हो, देखो क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जीएसटी बढ़ने से ये सब हो गया है, आपने जितनी बार इस टाइप की बातें की, ठीक है, उस स्टेट को देखो वो कितना तरक्की कर रहा है, ये पॉजिटिव है। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, आपने बोला वो तो बहुत अच्छा है लेकिन इस स्टेट में तो गवर्नमेंट अच्छे से काम ही नहीं कर रही। अगर आपने ये कहा है तो वो कंप्लेंट है। आपने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शॉपिंग कर सकें, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वो कार ले लें, वहाँ रेस्टोरेंट में चले जाएं, इस टाइप का आप कुछ भी कह रहे हो तो वो सब कंप्लेंट के कैटेगरी में ही आती है, ठीक है। आपने कहा यहाँ तो यार देखिए ना, मौसम के बारे में भी जो अपन बोलते हैं ना, उफ कितनी गर्मी हो गई है, आपको क्या लगेगा ये कंप्लेंट है? यस, ये कंप्लेंट है। रॉन्डा बर्न कह रही है अगर आपने अप्रिसिएशन नहीं किया है तो वो कंप्लेंट है। अब आप मन में सोचोगे तो हम लोग बात ही क्या करेंगे, है ना। वो भी हमको रॉन्डा बर्न आगे धीरे धीरे बताएंगे, है ना। हम लोग बात ही यही करते हैं, आज कितनी गर्मी हो गई ना, एसी तो लगता है काम ही नहीं कर रहा है, कितनी ठंड हो गई, लगता है हीटर मंगाना पड़ेगा, ऐसे ही बात करते हैं ना हम लोग। हाँ, तो इस टाइप की जो भी बात आप कर रहे हो वो सब कंप्लेंट के कैटेगरी में आती है ना। रॉन्डा बर्न कह रही है अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एक तो जो आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको, आपने जो लिस्ट बनाई है वही आपको चाहिए, आप उसको अपने लाइफ से दूर कर रहे हो। संग संग में आप जैसी बातें कर रहे हो आपको वैसे ही सिचुएशंस और मिलेंगे, या बिकॉज व्हाट यू आर गिविंग इज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। आप जो बोल रहे हो आप वो ही अट्रैक्ट कर रहे हो, वैसी ही और सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे लाइफ में। मतलब कि आप सोचिए जो लोग अफ्रीका में रह रहे होंगे वो कितनी कंप्लेंट करते होंगे, इसलिए वो वहीं पे जाके अटक गए, ठीक है। या उन्होंने कभी वेदर के बारे में इतनी कंप्लेंट की होगी इसीलिए वो वहीं जाके बॉर्न हुए, आई डोंट नो, ऐसे ही होता होगा। इफ़ यू रीड अदर बुक्स ऑफ रॉन्डा बर्न या आप और भी और स्क्रिप्चर्स पढ़िए, उसमें यही सब लिखा हुआ है कि जो हम बोल रहे हैं हम वैसे ही जगह में जाके पहुंच जाते हैं, हम और ज़्यादा मेरे को वहाँ पे ऐसे बोलने का मिलेगा मौका, ठीक है। तो ना रॉन्डा बर्न कह रही हैं कि उन्होंने दोनों चीज़ ट्राई किए, क्या, काउंटिंग हर ब्लेसिंग्स एंड कंप्लेनिंग। और वो ये कह रही हैं, एंड ये वो नहीं, आप भी देखोगे बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप चीज़ें अप्रिशिएट कर रहे हो। जब ये वाला चैप्टर हमने फर्स्ट पढ़ा था तो ठीक है, हमने नेक्स्ट दिन से देखा कि हाँ सारे सिग्नल्स को हमने इतना थैंक यू किया, अच्छा हुआ रेड लाइट होगी, चलो हम फ़ोन में मैसेजेस देख लेते हैं, हाँ चलो हम किसी से फ़ोन पे बात कर लेते हैं। फिर ऐसा लगा कि ना सिग्नल्स कम हो गए लाइफ में, सब हर जगह ग्रीन लाइट ज़्यादा मिलने लगी है। आप अपनी बातें अपने थॉट्स पे वर्क करोगे, यू विल सी सच थिंग्स हैपनिंग विद यू ऑल्सो, ओके। तो रॉन्डा बर्न भी यही कह रही हैं, जब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी शुरू की, काउंट मतलब पहले तो आप उनको देखोगे, उनको ढूंढोगे, तभी उनको काउंट करोगे, तब से उनकी लाइफ में अबंडेंस आना स्टार्ट हो गया, ओके। या प्लीज रीड। Yeah, better to lose, uh, better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to count your to counting your troubles. Maltby D. Babcock, 1858-1901, writer and clergyman. तो ये हमसे कह रहे हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स इतनी सारी काउंट करिए कि वो ज़्यादा अच्छा है कि आप काउंट करते करते काउंट करना ही भूल जाएं, हाँ, कि माने इतनी ब्लेसिंग्स हैं, आप वो करना ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी कंप्लेंट्स करोगे तो आपकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में कम हो जाएंगी। क्या ज़्यादा अच्छा है ना। आप देखिए हमारी जो लाइफ है, हम सब एक सर्टेन एज के हो गए हैं, हमारे लाइफ में आप देखिए क्या याद रहता है हम लोगों को या तो बहुत अच्छी चीज़ें याद रहती हैं या वही चीज़ें याद रहती हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती हैं, हाँ। जबकि हमारे इतने सारे इयर्स में अच्छी चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, लेकिन हमको ज़्यादा क्या याद रहती हैं, वो 10, 5, 15 चीज़ें जो हमको कम अच्छी लगती हैं, हमको वो ज़्यादा अच्छे से डिटेल में याद रहती हैं, है ना। हम लोग बात भी उनके बारे में ही करते हैं कि अरे हम यहाँ गए थे ना, मेरा लगेज खो गया था। आपको पूरी ट्रिप में
ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका कि लगेज खो गया, लेकिन उसके अलावा किसी ने आपकी हेल्प की, किसी ने आपके संग क्लोथ शेयर किए, किसी ने आपको वहाँ न्यू शॉपिंग करने का मौका मिला, उसके बजाय आपको वो जो लगेज खो जाता है आपको वही याद रहता है, आप उसी के बारे में बात करते रहते हो, है ना। आप 10 ट्रिप्स पे गए होगे, एक ट्रिप में ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप उसी पे स्ट्रेस करते रहते हो, उसी के बारे में बात करते रहते हो, ठीक है। तो रॉन्डा बर्न हमसे ये कह रही है, हमको उसके बारे में बात नहीं करनी है, हमको बाकी 9 ट्रिप्स के बारे में बात करनी है, उनमें जो अच्छा हुआ है हमको उनके बारे में बात करनी है। एक जो चीज़ गड़बड़ी हुई है उसके में भी और भी जो भी अच्छी चीज़ें हुई होंगी उसके बारे में बात करनी है। ओके, सो लेट्स रीड। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You Yes. can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal, and keep all of your gratitude in one place. Today, you're going to make a simple list of 10 blessings in your life you're grateful for. यस, तो कल से हमको ये स्टार्ट करना है। कल से माने जो नेक्स्ट 28 डेज इस जर्नी के हैं, इस सेशन के हैं, आपको हर दिन सुबह उठ के ये करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एज अर्ली इन द डे एज पॉसिबल। एज अर्ली इन द डे ये नहीं होता है कि सेशन में आने के पहले आपने लिख लिया, नहीं, सुबह उठते ही बेस्ट। उसका इसके पीछे एक साइंस है, सुबह उठते ही हमको क्यों लिखना है वो हम लोग को बताएंगे आगे पेजेस में या नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट चैप्टर में। तो सुबह उठते ही आपको ये अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। क्या करना है, शी इज टेलिंग अस, आप कंप्यूटर पे भी लिख सकते हो या डायरी में भी लिख सकते हो। हम आपसे कह रहे हैं आपको लिखना ही है, ठीक है। कंप्यूटर पे आपको नहीं टाइप करना है, फ़ोन पे आपको नहीं टाइप करना है। अभी जो हम अपनी हैबिट बना रहे हैं, आप लोग न्यू हैं, हम सबको लिखना ही है। जब हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो लाइक आई टोल्ड यू, हमने खुद पढ़ी थी बुक, तो हमने कंप्यूटर पे लिखा था। हम क्या करते थे, जाते थे ऑफिस, 10 o'clock पहुंचते थे, सबसे पहले लैपटॉप खोल के अर्ली इन द डे वो था मेरे लिए, ठीक है, और लिखना स्टार्ट कर देते थे। कुछ चेंज कर देते थे, कुछ हुआ चेंज कर दिया उसको, वो करते थे। बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं प्रिया, सुबह उठ के सबसे पहले लिखना है, कंप्यूटर पे नहीं टाइप करना है। एंड ट्रस्ट मी, इस बात को आज September 1st 1.5 साल पहले से आज तक एवरी डे आई एम राइटिंग इन अ रजिस्टर लाइक दिस। कैन यू सी, या आई हैव अ बिग रजिस्टर। हम आई थिंक दिख नहीं रहा है ना, हाँ, या because your background has been changed ना, so the register is not being displayed properly. ओके, सो बेसिकली इट्स अ रजिस्टर, या आप डायरी में लिख सकते हो और हर दिन आपको उसमें लिखना है। तो कल सुबह उठते ही यू वांट टू गो टू द लू, फ्रेशन अप एंड राइट डाउन, आपको तभी लिखना है। ये नहीं कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, सब बच्चों को स्कूल में भेज दिया, ऑफिस के लिए लॉग इन कर लिया, ठीक है, ऑफिस पहुंच गया, फिर नहीं। आपको सुबह उठ के जितने जल्दी पॉसिबल हो उतने जल्दी उठ के कितनी ब्लेसिंग इन योर लाइफ फॉर विच यू आर ग्रेटफुल। ओके, माने आपकी लाइफ में कौन सी वो 10 चीजें हैं वो आपको लिखनी है। ओके, या प्लीज रीड। और हर दिन, सॉरी, आपको न्यू रजिस्टर लेना है, जैसा हमने आपसे कहा था कि कल आज आपने आई थिंक ढूंढ लिया होगा, और हर दिन इसी में लिखना है। ये नहीं कि कल एक वहां लिख दिया, परसों एक पेपर में लिख दिया, परसों भूल गई डायरी कहीं उधर उधर रखी है, कहीं और लिख दिया, नहीं। एवरी डे यू हैव टू राइट इन द सेम जर्नल। ओके, या प्लीज रीड। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, could you please turn the page? Yes, I've done it, yeah. Person or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Yes, तो उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन हमेशा रीजन देके अपना ग्रैटिट्यूड बताते थे कि क्यों वो ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, है ना। आप भी देखिए, आपने किसी को गिफ्ट दिया और उसने एक सिंपल सा थैंक यू बोल दिया, ठीक है, आपने इतना सोचा कि यस उसको ये ड्रेस अच्छी लगती है, या आपने कुछ एक फ्लावर्स भेजे, आपने इट्स लाइक अभी तो कितना सब लोग ऑनलाइन गिफ्टिंग कर रहे हैं ना, आपने इतना रिसर्च किया कि ये अच्छा लगेगा कि वो अच्छा लगेगा, बहुत रिसर्च करके सोच के आपने उसको एक बुके भेजा उसके बर्थडे पे। इट कुड बी एनीवन, योर बॉस, योर सिस्टर, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर एनी फ्रेंड, आपने उसको गिफ्ट भेजा इतना सोच के, और उसने आपको सिर्फ एक सिंपल थैंक यू बोल दिया, ठीक है, वो तो आजकल बोलेंगे दिस इज फॉर्मेलिटी, उसने सिंपल थैंक यू बोल दिया, या उसने आपको बोला थैंक यू, आई एम सो हैप्पी, इतने अच्छे फ्लावर्स थे, एकदम मेरे फेवरेट फ्लावर्स है, आपको किसमें अच्छी फीलिंग आई, टेल मी। या आई थिंक सम नेटवर्क चैलेंज। Second case. Second one.
सेकंड नहीं, बताइए रीजन के संग कि यस हाँ सुन के बहुत अच्छा, दिल गदगद होने लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी, मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी, ऐसा लगेगा ना एकदम, यस ऐसे ही लगेगा ना। कितना सोच के आपने, जैसे ना कि कोई तैयार होता है और किसी से पूछो कैसे लग रहे हैं, सामने वाला बुक उठा के देख भी नहीं रहा होता है, बोला हाँ हाँ ठीक है अच्छे लग रहे हो, कैसा लगेगा। सेम दूसरा जब नहीं वाओ आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ ये कलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये एक न्यू ड्रेस ली है तुमने, या इट इज ऑसम, ऐसे कोई बोलेगा आपको कैसा लगेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, बोले न्यू परसों ही तो पहन के गए थे, उल्टा भी हो सकता है। सो इट शुड बी जेन्युइन, ओके, द फीलिंग्स हैव टू बी जेन्युइन। तो जितना ज़्यादा आप रीज़न दे के ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा आपकी फीलिंग्स जनरेट होंगी, एंड इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स। बोला ना ग्रैटिट्यूड इज़ अ फीलिंग, जितनी ज़्यादा फीलिंग्स होंगी उतनी ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, उतनी जल्दी आपकी ड्रीम्स आपके लाइफ में आएंगी। ओके, तो रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स रीड हाउ वी हैव टू राइट इट। हम लोग को अपने मन से नहीं लिखना है, रोंडा बर्न ने हमको ये 4 ऑप्शंस दिए, सॉरी हाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कोई एक चूज करके आपको लिखना है, या आप ऑल्टरनेटिवली ये चारों भी यूज कर सकते हो। ओके, बट इस तरीके से लिखना है। या प्लीज रीड। Here are some ideas for writing your list. I'm truly blessed to have dash because dash. So I am truly, I need to explain, elaborate as well. I'm truly blessed to have a mother. No, I will do that, Deepak. Okay, I will do that. आप पढ़िए। I'm truly blessed to have dash because dash. Why? Yeah. I'm so happy and grateful for dash because dash. And I'm truly grateful for dash because dash. With all my heart, thank you for dash. Thank you. Because why? Okay, तो क्या हमको देखना है हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो हमको लिखना आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई मॉम, okay, because she makes yummy parathas. Okay, I have to write like this. Okay, I'm so happy and grateful for my curly hair because it makes me different, makes me look different. It's like, आपको इस तरीके से बोला। I am truly grateful for my eyes because I can read. With all my heart, thank you for my laptop because I can conduct these sessions. Okay, माने आप किस चीज के लिए थैंक यू हो, ग्रेटफुल हो, तो इसमें वो व्हाट आ जाता है, और क्यों थैंक यू हो उसमें ये आपको ये लिखना है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए हर सेंटेंस में, आप देखिए फॉर्मेट जो भी हो रहा हो सब में ये बिकॉज कॉमन है। आप देख रहे हो हर सेंटेंस में बिकॉज लिखा हुआ है। हाँ, तो अब आप जैसे हमने फर्स्ट टाइम जब हमने लिखना शुरू किया था तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई टू हैव माई मॉम, बिकॉज हम नहीं लिखते थे, सो दैट, फॉर, इंग्लिश में इतने सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना, हम वो लिख देते थे, बट नहीं, आपको बिकॉज ही लिखना है, बिकॉज देयर इज अ रीजन। इसीलिए उन्होंने कहा, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ होगा फॉर्मेट, ओके, बिकॉज दिस बुक इज सपोज टू बी साइंटिफिक, हमको ये बिकॉज लिखना ही है। आप चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, बट हर में बिकॉज लिखना है। ओके, तो कल जब आप सुबह उठ के अपनी डायरी में ओम लिखिएगा, डेट लिखिएगा, जैसे भी आप लिखना है डेट लिखिएगा, और फिर 1 to 10 आपको जो ब्लेसिंग्स लिखनी है उसको इसी फॉर्मेट में लिखना है। ओके, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव। अब आप सोचोगे 10 चीजें लिखनी है सुबह सुबह उठ के, कितना सोचना पड़ेगा। ओके, सो टुमारो वी विल शेयर कि आपने जब 10 चीजें लिखी आपको कैसा लगा। अच्छा, कल से जो भी ब्लेसिंग्स लिखिएगा, जैसे ही आपकी ब्लेसिंग्स हो जाएंगी ग्रुप में आपको लिखना है ब्लेसिंग्स डन। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं मैसेज लिखना बहुत जरूरी है तो जस्ट एक टिक मार्क भेज दीजिएगा, या एक थम्स अप वाला ऐसा वाला साइन भेज दीजिएगा, नॉट ठेंगा वाला, बट लाइक यस इट्स डन। ठीक है, ऐसा वाला आप साइन भेज दीजिएगा कि यस आपने अपनी ब्लेसिंग्स लिख ली है। नो वन इज कीपिंग अ कि हाँ आपने किया है कि नहीं है, बट इट इज फॉर योर अकाउंटेबिलिटी। आप जब भेजते हो ब्लेसिंग्स डन तो दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करते हो कि हाँ उसकी ब्लेसिंग्स हो गई, मेरी लिखनी बाकी है, आप वैसा उस लिए भी हो है। प्लस आप जब भेजते हो तो आपको ही लगेगा कि हाँ, टेल मी, आप जब भेजते हो तो आपको कैसा लगता है? यस, अच्छा लगता है ना? यस छाया जी, हैप्पी टू सी यू। यस, एंड आप भेजते हो तो अच्छा ही लगता है। Yes, it feels very good. Yes, so all of you have to send after writing your blessings. झूठ मूठ का लिखोगे, सी इट इज फॉर यू। आपने ब्लेसिंग्स लिखी हैं तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपने वर्कआउट किया है तो आपकी बॉडी फिट होगी, है ना, आपने हेल्दी फूड खाया है तो इट विल रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ, या तो ये आपके लिए है। तो फॉर्मेट बस ये रहेगा। या प्लीज रीड। प्रिया जी, यस, ब्लेसिंग्स जो हमको ग्रेटिट्यूड लिखना है मॉर्निंग में ही लिखना है क्या? हाँ, मॉर्निंग में ही लिखना है। देखिए सुबह उठते ही लिखना है, इसके पीछे एक साइंस है। ओके,
वरना हम लोग उसके बारे में और बात करते हैं, बट सबसे पहले उठ के लिखना है आपको। लाइक आप वॉशरूम जाके लिख सकते हो। अब ये नहीं कि आपने चाय बना ली, कॉफी बना ली, लेके बैठ, वो भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप वैसे भी कर सकते हो, बट शी इज टेलिंग अस एज सून एज यू गेट अप और एज अर्ली इन द डे एज पॉसिबल। ओके, बिकॉज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हैबिट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सुबह ही लिखना है। या Thank you. थैंक यू। हाँ, यस दीपक जी, प्लीज रीड। Okay. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or read out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. या तो आपको क्या करना है, आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी सबसे पहले सुबह सुबह। 10 लिखने के बाद आपने क्या किया, फर्स्ट वाली ब्लेसिंग को पढ़ा। ओके, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माय मॉम बिकॉज शी मेक्स यमी पराठा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको बोलना है, हाँ, लिखना नहीं है। ठीक है, सेकेंड ब्लेसिंग पढ़ी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई कर्ली हेयर बिकॉज इट मेक्स मी लुक यूनिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से आपको अपनी सारी 10 ब्लेसिंग्स पढ़नी है। हर ब्लेसिंग के एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और जब आप ये बोल रहे हो, आपको फील करके बोलना है। ये नहीं कि जैसे हम लोग बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसुर, वैसे नहीं पढ़ना है। यू हैव टू रीड इट विद फीलिंग्स। ओके, जितना फीलिंग से आप बोलोगे, ये जैसे नहीं कि आई लव यू चलते फिरते किसी को भी बोल दो, नहीं, जिसको आप जेन्युइनली फील करते हो उसको एकदम मन से अच्छे से सोच के बोलते हो ना, यस, वैसे ही बोलना है। ओके, सो यू हैव टू फील इट एंड रीड इट। या प्लीज रीड। Yeah, thank you, Priyaji. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They are simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. Right? Yes. तो अब क्या करना है, अब ये जो हम लोग ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी, तो आप देखिए हम एक्चुअल में किसको थैंक यू बोल रहे हैं। कोई तो एक है जिसने हमको यहाँ पे भेजा, जिसने डिसाइड किया कि हाँ मेरे कर्ली बाल होंगे, कि यही मेरी मम्मा होंगी, ठीक है, कि यही मेरे को सामान मिलेगा, इसी फैमिली में हम बॉर्न होंगे, यही मेरी फ्रेंड्स होंगे, है ना। किसी ने तो ये डिसाइड किया। आप सब मानते हो कि एक वो सुप्रीम पावर ऑल माइटी, आप उसको हो सकता है राम जी, राधा जी, कृष्ण जी, शंकर जी ऐसे बोलते हो, लेकिन कोई तो है जिस पे आपको विश्वास है ना। तो रोंडा बर्न भी यही कह रही है, व्हेन वी डायरेक्ट आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स समवन। ओके, माने आपने रैंडम हवा में थैंक यू बोला। हवा भी एक बहुत पावरफुल एलिमेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको किसी को तो एक थैंक यू बोलना है ना। जिसने गिफ्ट दिया है उसी को थैंक यू बोलते हैं, है ना। आपने गिफ्ट दिया है, आपको थैंक यू बोलने के बजाय किसी और को बोल दिया तो भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। बोलिए अच्छा लगता है, बताओ, हमने काम किया है, सारा क्रेडिट उसने ले लिया, ऐसा फीलिंग हुआ आपको? ऑफिस में, घर पे, घर में भी होता है ये। हाँ, सब्जी बनाई हमने, क्रेडिट मिल गया मेड को, ठीक है, या सिस्टर को, या भाभी को, या मम्मा को, है ना। बताओ, हमने इतनी मेहनत की और उसको बोल दिया थैंक यू, हुआ है कैसे नहीं? ऑफिस में भी ऐसे होता है। तो सेम वे, जब आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो तो किसको बोल रहे हो? उसको भी क्रेडिट चाहिए, ठीक है। हमारे आप बोलोगे नहीं भगवान जी को ये सब चालीसा वालीसा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, बिल्कुल है। आपको जितना कोई प्रेज करता है आपको कैसा लगता है? तो नहीं, और अच्छे से करो, और अच्छे से करो उसके लिए। तो बिल्कुल वैसे ही आपको ये जो ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, आप जिसको भी थैंक यू बोलना है, यू हैव टू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स समवन। टुवर्ड्स हूम? शी इज टेलिंग अस, अगर आप विश्वास करते हो यूनिवर्स में, ठीक है, आप बोलते हो नहीं हम भगवान जी पे विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई तो है जो डिसाइड करता है कि आप इस दिन पैदा हुए हो, इस दिन आपकी लास्ट ब्रेथ होगी, है ना, वही डिसाइड करता है ये। तो आपको अपनी ग्रैटिट्यूड उसको डायरेक्ट करनी है। शी इज टेलिंग अस, उससे आपकी फीलिंग्स और स्ट्रांग होंगी और आपके लाइफ में वही गिफ्ट दे रहा है, वही आपको और चीजें देता जाएगा, ठीक है। सो अब क्या करना है आपको? शी इज टेलिंग अस कि हमको फॉर्मेट ऐसे लिखना है, हाँ, थैंक यू बोला है तो जब आप थैंक यू बोल रहे होगे, हाँ, तो आप मन में
उन भगवान जी को, जिसको भी आप अपने गुरु जी को मानते हो, आप पेरेंट्स को मानते हो, आप बोलते हो नहीं मेरे अंदर जो भगवान है, हम उसी परमात्मा को बोल रहे हैं, आप उसको भी बोल सकते हो, उसको आपको ये थैंक यू बोलना है। ओके, तो उससे आपकी फीलिंग्स और स्ट्रांग होंगी और आपके लाइफ में और ज्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी। या प्लीज जी, क्या वी कांट हियर यू दीपक? The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be a it could be difficult to find 10 things you're grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life you have received and are continuing to receive so much every day, each and every day. There's really so much to give thanks for. यस, तो अब ये प्रैक्टिस हर दिन हमको करनी है और ये बहुत पावरफुल है आपके लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, ठीक है? मेरे लाइफ में तो ऐसा ना, पहले जब हम उठते थे तो सुबह अरे ये करना है, वो करना है, जल्दी जल्दी, रश रश। आई थिंक कई जन अभी भी आप लोग ऐसा फील करते होंगे जो ब्लेसिंग्स नहीं लिख रहे हैं। हाँ, सुबह उठते ही रश रश, अरे जल्दी से भाग के ये करो वो करो, या ये लगता हो कि अरे अब क्या करें, आज सुबह से उठ के सेम ही डे है, सेम ही रूटीन है, सेम ही लाइफस्टाइल है, या ऐसा लग रहा होगा। तो अब ये प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे दिन का टोन सेट करने के लिए। जब आप सुबह सुबह फील करोगे कि वाओ इतनी अच्छी चीज़ है मेरे पास, लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ है मेरे पास, आई एम सो ग्रेटफुल भगवान जी, आपने हमको इतना कुछ दिया है, तो दिन का आपका मूड वैसा होएगा और जैसी फीलिंग्स होंगी वैसी ही आप चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो नाउ शी इज टेलिंग अस नेक्स्ट 27 डेज, माने कल डे 1 की प्रैक्टिस आप मॉर्निंग में करोगे। हर दिन रोज आपको 10 न्यू चीजें लिखनी है, ठीक है? और जो लोग दोबारा ये सेशन कर रहे हैं या कई सेशंस पहले कर चुके हैं, अब आप सोचोगे अब तो मेरे पास कोई चीजें ही नहीं बची, ऐसा तो देखिए हो नहीं सकता, है ना? ईच डे वी आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव न्यू थिंग्स। हर दिन आप सुबह उठ रहे हो, हर दिन एक न्यू सवेरा, ये वाला आपने भी सुना होगा ना, हर दिन एक न्यू सवेरा है, हर दिन न्यू है, आपको उसकी वो ब्लेसिंग्स ढूंढ के लिखनी है। अगर आप सेम चीजें भी लिख रहे हो तो थिंक ऑफ अ न्यू रीजन टू बी ग्रेटफुल फॉर। ओके, सिर्फ एक चीज तो नहीं होती ना, इतनी सारी। आप चॉकलेट भी खाते हो, कभी उसमें आप नट्स ऑब्जर्व करते हो, कभी देखते हो कि नहीं उसका डार्क चॉकलेट कितना अच्छा लग रहा है, कभी देखते हो अरे कितने अच्छे से ये रैप है, हाँ ठंडी में ज्यादा अच्छा लग रहा है कि गर्मी में, आई मीन यू नो मेल्टेड ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन फाइंड इन जस्ट अ चॉकलेट। तो आप वैसे ही जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटफुल हो रहे हो उसके न्यू रीजंस ढूंढ के आपको उसमें लिखने हैं। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव बीन राइटिंग एंड अब उनको मे बी शायद मोनोटोनस लगने लगा है, ठीक है? तो आप न्यू रीजंस ढूंढ के उसके लिए लिखिए, ठीक है? देयर इज रियली सो मच टू गिव थैंक्स फॉर, देयर इज एक्चुअली देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। अगर आप अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में ही जस्ट सोचना शुरू करो, लाइक आप, हम सबको पता ही है हमारी बोन्स कितनी है बॉडी में, 206 यस 206 की 205, आई डोंट नो, 206 ही होंगी, चलिए। तो उतनी बोन्स के लिए आपको थैंकफुल होना है। तो 206 यानी अगर आप हर दिन 10 ब्लेसिंग्स भी लिखोगे तो कितने दिन तक आप खाली बोन्स के बारे में लिख सकते हो, है ना? इफ यू नो द नेम्स दैट इज, या तो आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास, ये तो सिर्फ बोन्स हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन सिस्टम, इफ यू जस्ट वांट टू बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी तो कितने सारे आपके पास चीजें हैं ग्रेटफुल होने के लिए। ओके, सो प्लीज जी। Yeah, so you could be grateful for your home, your family, your friends, your work, your pets. You could be thankful for the sun, the water, the that you drink, the food that you eat, the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. यस, अब रॉन्डा बर्न को पता है कि हम लोग थोड़े से लेजी टाइप के लोग हैं, हम लोग को मेहनत करने का मन नहीं है। एक तो प्रैक्टिस दे रही हैं, ऊपर से अब सोचो भी, तो शी हैज ओनली गिवन अस सम ऑप्शंस टू थिंक अबाउट। ओके, तो वो कह रही हैं वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक्स। आपके पास एक घर है, ठीक है, आपके पास एक बेड है, आपके पास एक मैट्रेस है, आपके पास एक पिलो है, या अभी विंटर है तो आपके पास ब्लैंकेट है, गीजर है, हॉट वाटर है उसके अंदर, एक कमोड है आपके पास, एक डोर है कि आप डोर बंद करके टॉयलेट जा सकते हो। यस, आप उन सब चीजों के बारे में ग्रेटफुल हो सकते हो। ओके, नाउ शी इज टेलिंग अस यू हैव अ फैमिली,
हाँ, आप किसी से बात कर सकते हो, यू हैव योर फ्रेंड्स, ओके, मे बी किसी ने आपको एनकरेज किया है, कोई आपकी खिंचाई करता है, कोई आपको हंसाता है, आप किसी के कंधे पे रो सकते हो, यू नो, यू कैन थिंक ऑफ देम एंड राइट, यू हैव अ वर्क, आपका बॉस है, आपका लैपटॉप है, आपका फोन है, आपका चार्जर है, जिस चीज को आप यूज कर रहे हो, आप सोचोगे नहीं ये सब ब्लेसिंग्स क्या है, ये तो बहुत कॉमन चीज है, सबके पास है। नहीं, आपके पास है मतलब वो आपकी ब्लेसिंग है। जिसके पास नहीं है उसने क्या किया है, उसने उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया, इसलिए उसके लाइफ से चला गया, है ना। तो आपके पास है, आपके लिए वो ब्लेसिंग है। अब आप सोचो कि उसके लिए रीजन कहाँ से मिले, तो आप तुरंत उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन करना, ठीक है। बिना उसके, अगर आप अभी तक अपनी कार के लिए कंप्लेन कर रहे थे कि अरे कार ठीक नहीं है, बार बार उसको सर्विस कराना पड़ता है, तो आप सोचो अगर वो कार भी नहीं हो तो आप कैसे ऑफिस जाओगे, या कैसे अपने घर का सामान लेने जाओगे, या कैसे ट्रैवल करोगे। तो जब आप उसका रीजन ढूंढेंगे तब आप उसके लिए और ज्यादा ग्रेटफुल फील करने लगेंगे। तो नाउ शी हैज स्टार्टेड ऑफ विद द बेसिक्स, या कि पहले आपके पास जो चीजें हैं, जब आप इनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू होगे, उसके बाद आप सोचोगे अरे सन के लिए कौन थैंकफुल होता है ना। अभी जो न्यू है जर्नी में उनको यही लग रहा होगा, बट आप देखिए सन, वाटर टू ड्रिंक, फूड दैट वी ईट, हर चीज के लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है, हर चीज के लिए। आप सोचिए एयर की, जिसको हम जो सांस लेते हैं, अभी आप देखिए पूरे पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में सब जन ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, यू नो, उसके बारे में ही बात कर रहे थे। आप देखिए अगर हम लोग एयर के लिए ग्रैटिट्यूड करते रहे, हाँ, तो ऐसा कभी होएगा? कभी नहीं होएगा। ट्रीज के लिए कौन ग्रैटिट्यूड करता है? ऑक्सीजन हमको देता कौन है? फ्रूट्स, सारी वेजिटेबल्स, ये सब कहाँ से आती हैं, ठीक है। ये सब हर एक एक चीज जो यहाँ लिखी हुई है, आप उसको पढ़ेंगे, आप अपना खुद रीजन ढूंढिए और उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ओके। या प्लीज रीड। Yeah, thank you, Priya. You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your tongue that smells, your nose that smells, your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? या Here is तो आप देखिए उन्होंने हमको और भी बता दी इतनी सारी चीजें कि आप एक एक माइन्यूट से माइन्यूट, छोटी से छोटी चीज के लिए भी सोचने लगोगे, वो सब एक एक ब्लेसिंग है। एक एक ब्लेसिंग, आपने कभी सोचा है टूथब्रश एक ब्लेसिंग है? सोचा है कभी आपने? हाँ, नहीं सोचा होगा। बिना उसके सोचिए कैसी होगी लाइफ। यू वांट टू डू इट विद द दतून, ओके। हाँ, दतून कहाँ लेने जाएंगे? हाँ, आप ऑफ कोर्स नेचुरल उसमें जाने के लिए आप कर सकते हो उसे, बट स्टिल वो भी तो आपका एक यू नो टूथब्रश टाइप का ही है। उसके बिना आपके टीथ कैसे क्लीन आएंगे? यू जस्ट कीप थिंकिंग एंड यू विल सी कि अरे इतनी चीजें हैं थैंक यू होने के लिए। हाँ, इतनी सारी चीजें हैं, हाँ, लाइक स्पेक्स, कोम, हर चीज के लिए थैंकफुल आप हो सकते हो। या प्लीज रीड। Yeah, here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. या तो आप हर चीज के लिए कभी भी और जैसे आज मेरा मन हो रहा है कि चलो हम अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, ठीक है, कि जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कि मेरे टीथ हैं, ये कि मेरी टंग है, जो भी ईयर्स हैं, आईज हैं, एक दिन आपने उसके लिए चूज कर लिया, या आप मिक्स ऑफ चीजों के लिए भी कल ग्रेटफुल हो सकते हो। ओके, सो लेट्स रीड। शी हैज आइडेंटिफाइड सम एरियाज, आप उसमें देख के ग्रेटफुल हो सकते हो। क्या gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. Yeah, please read. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and the other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day,
you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. यस तो अब देखिए रोंडा बर्न हमसे यही कह रही हैं कि जितना ज़्यादा आप फील करोगे, फील करके आप ग्रैटिट्यूड करोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा कोई कोई दिन एक्चुअल में ऐसे होता है, मे बी आप कुछ सोच रहे हो और ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, तो आपको हो सकता है कोई दिन बहुत अच्छा लगे, कोई दिन थोड़ा सा नॉर्मल सा लगे, कोई दिन कोई ज़्यादा फीलिंग्स नहीं जनरेट हो, बट आप डेफिनेटली ब्लेसिंग्स लिखने के बाद आपको अपने फीलिंग्स में एक चेंज महसूस होगा ही होगा। ओके तो जितना ज़्यादा आप फील करके लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। ओके तो आपको क्या करना है, आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है उस फॉर्मेट में। ओके अच्छा हम क्या करते हैं, बिकॉज उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है हमको कि हमको हमारी ब्लेसिंग्स ऑल माइटी को की तरफ डायरेक्ट करनी है। तो व्हेन आई राइट माई ब्लेसिंग्स आई राइट लाइक दिस, थैंक यू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मदर बिकॉज शी टॉट मी अमेजिंग थिंग्स। ओके तो हम उसमें पहले ही लिख देते हैं, हर ब्लेसिंग के पहले हम लिखते हैं थैंक यू गॉड, थैंक यू देवी माँ, थैंक यू शंकर जी, थैंक यू साईं बाबा, जो आपको लिखना है, या थैंक यू गॉड, या जस्ट लाइक यू आर डायरेक्टिंग दैट ब्लेसिंग टू द ऑलमाइटी। आप ऐसे लिखिएगा, ये मेरा सजेशन है, बट बुक में ऐसा नहीं बोला है, बट उन्होंने कहा है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को एक सुप्रीम पावर की तरफ डायरेक्ट करिए। सो इट इज़ अप टू यू। मेरा सजेशन जो हम आपको दे रहे हैं वैसा हम करते हैं, वैसा हमने आपको बताया। ओके you can write it like that and this is the format that we have to follow every day। उस 4 फॉर्मेट में से आप कोई भी लाइन चूज कर सकते हो, लेकिन बिकॉज आपके हर स्टेटमेंट में होना चाहिए। इसमें मेरे को आप समझ, मेरे से वो मत करिएगा, क्या बोलते हैं उसको, डिस्कशन, कि बिकॉज की जगह देयरफॉर, सो, हेंस, ये वो सब नहीं करना है। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश ओवर हियर, वी आर फॉलोइंग व्हाट द बुक इज टेलिंग। या अच्छा अब कल से आपको ये रोज करना है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग आप एक न्यू जर्नल बनाओगे, उसमें लिखोगे। जिनकी पुरानी जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल चल रही है, जो पहले से सेशन में, दे विल कंटिन्यू विद दैट जर्नल। ओके आपको सडनली एक न्यू बनाने की जरूरत नहीं है अनलेस यू वांट टू, या बिकॉज आई विल कंटिन्यू इन माई एग्जिस्टिंग जर्नल। आप पुराने में कर सकते हो, जो लोग न्यू हैं यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन अ न्यू जर्नल। ओके अच्छा लेट्स रीड। या Magic reminder, make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you'll need to do something specific before you begin tomorrow. या तो अब ये जो है, ये हम लोग पढ़ेंगे क्या है एक्चुअल में। आपको क्या करना है, एवरीवन कैन सी व्हाट आई हैव इन माय हैंड। या क्या है, एक पेबल है, स्टोन पेबल, जो भी आप उसको बोलिए, रॉक। या इट हैज टू बी, आप सबको इस टाइप का एक रॉक ढूंढना है विच फिट्स इन योर पाम। ओके लास्ट टाइम या प्रीवियस सेशन में आई गॉट सम बिग बिग पेबल्स। नहीं, हम लोगों को किसी को मारना नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। इट हैज टू बी समथिंग स्मूथ। ओके रफ एजेस नहीं होने चाहिए, इट शुड फिट इन योर पाम कंफर्टेबली। ओके मैंने इतना बड़ा सा पत्थर वत्थर वो सब नहीं चाहिए, छोटा सा सॉफ्ट क्यूट जो आपके हाथ में फिट हो जाए। ओके इट कंफर्टेबली फिट हो जाए, वैसा आपको एक तो रॉक ढूंढना है। वी विल रीड अबाउट दैट, बट हमने आपको बता दिया दोज हु वांट टू लीव कैन लीव बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 9:45। तो आपको एक ही ऐसा स्टोन करना है। जो लोग न्यू हैं, आई एक्सपेक्ट कि आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा फोटो, ओके सो दैट वी अंडरस्टैंड आपको मिल गया। इट शुड बी अ स्टोन, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी अ स्टोन रॉक। ओके लकड़ी का, कांच का, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी अ स्टोन। ओके जैसा डेकोरेशन में आजकल लगा रहता है, या बीच पे जनरली जो रहते हैं, उस टाइप का कोई एक तो नेचुरल स्टोन चाहिए हमको। या प्लीज रीड। Magic practice number 1, count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you're grateful for. Second thing, write why you are grateful for each blessing. Third, go back and read your list, either in your mind or read out aloud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for the blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 7 days. Yeah, fifth. Fifth is read tomorrow's magical practice today. Yes, so we'll just quickly go through कि इन्होंने बोला क्या है, बट यही है कि आपको एक तो स्टोन लेके आना है जो इस टाइप का है। ओके या so you can just read this paragraph. First find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand.
and that you can choose your fingers around, that you can close your fingers around, मतलब आप fist बना सको. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand, and when you hold it. यस, तो हमको एक तो ऐसा स्टोन ढूंढना है, एक पेबल ढूंढना है जो हमारे हाथ में कंफर्टेबली फिट हो जाए. कोई भी कलर हो सकता है, वो ड्राइंग भी बनी हो सकती है, कोई इशू नहीं है. जो लोग न्यू है, इफ यू वांट यू कैन शेयर द पिक्चर, इफ यू वांट नहीं, आई थिंक आप पिक्चर शेयर कर दीजिएगा क्लिक करके कि वो कैसा है. इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि वो ना एकदम खो जाए हाथ के अंदर, नहीं. इट हैज टू बी लाइक अ डिसेंट साइज दैट फिट्स इन योर पाम. ओके, या सो थैंक यू दीपक, थैंक यू फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच. Okay. Thank you. Yeah. So let's do gratitude, and then we'll take some questions or sharings, if you have any for the chapter that we read today or for the previous one. Okay. So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for giving us this beautiful day today. Thank you for the positivity that you have filled in our lives. Thank you for bringing us all here together to walk on the path of gratitude. Thank you for the love and health of my family and my friends. Thank you for all the blessings that you have showered on me all my life. Thank you, thank you, thank you. Now please close your eyes. Just one second. Please close your eyes and just feel, or repeat if you want, or you can think of something else also, okay? So I am truly blessed. I am positive. I am grateful. I am healthy. I am healthy. I am wealthy. I am wealthy. I am wise. I am wise. I am successful. I am I am successful. loved. Okay. We'll try and incorporate some affirmations every night before we close the session. Okay. So if you want, you can choose some of your own. Okay. We will do just a little bit or simple ones every day. So this is what I've thought before sleeping. If we incorporate something like this, really nice for all of us. Okay. So thank you. Any questions that you have for the chapter? Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Priya ji. थैंक यू. सबको क्लियर है हमको ब्लेसिंग्स कैसी लिखनी है? हम इसका फॉर्मेट शेयर कर देंगे. देखिए हम लोग यहाँ पे तो चैप्टर पढ़ते हैं, बट और अच्छा होगा कि अगर आप ये चैप्टर खुद से एक बार पढ़ें. ठीक है. इफ यू वांट यू कैन रीड इट बिफोर कमिंग टू द सेशन, और बिफोर वी रीड द नेक्स्ट चैप्टर एनी टाइम टुमारो. अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहता है. ओके. इतना टाइम नहीं लगता है जितना हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, इतना अपने आप पढ़ने में नहीं लगता है. इट इज लाइक जस्ट मे बी 6 to 7 पेजेस एवरी डे रहते हैं. आप उसको आराम से पढ़िए. यू विल फील समथिंग एल्स. कुछ होता है कि मे बी आप कहीं और ध्यान दे रहे हो, हाँ, कि अरे इसका कैमरा ऑन है, वो क्या कर रहा है, घर में क्या हो रहा है, हाँ. अगर आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो व्हेन यू रीडिंग ऑन योर ओन, ओके, आपको एक डिफरेंट टाइप की कुछ समझ में आएगा. ओके. इट्स लाइक ईच टाइम यू आर वॉचिंग अ मूवी यू नोटिस समथिंग एल्स. हाँ, कभी आप गाना सुन रहे होते हो, कभी उसका डांस देख रहे होते हो, कभी उसकी ड्रेस देख लो, डांस बहुत देख लिया, चलो अब उसकी ड्रेस देखते हैं, है ना, उसने बोला क्या, उसने पहना क्या, each time you notice something else. So when you're reading it yourself, you will observe something new for you. Okay. So I strongly suggest कि आप खुद भी एक बार ये चैप्टर पढ़िएगा. If you want, आप हिंदी में पढ़ सकते हो. अगर आप इंग्लिश में पढ़ चुके हो तो हिंदी PDF भी हमने ग्रुप में शेयर की हुई है, आप हिंदी में पढ़ लो. अगर आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश ही ठीक है तो आप इंग्लिश में पढ़ लो. ओके. यस. या अब ये जो ब्लेसिंग्स हम लिख रहे हैं, ओके, जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेन से लिख देते हैं. ओके. तो आपका जो पेन है वो कुरकुरा टाइप का नहीं होना चाहिए. ठीक है. ये नहीं कि लिख रहे हैं, लिखते लिखते कड़कड़ जैसे नहीं देखा है पहले कितने अच्छे वो रेनॉल्ड्स वगैरह के पेन के ऐड आते थे. सडनली हमको ध्यान आ गया, रिमेंबर, कि वो विल पे साइन करने जा रहा होता, एकदम डेथ बेड पे होता, वो पेन ही नहीं चल रहा होता, और वो रिमेंबर दैट ऐड, आई थिंक बहुत साल पहले आता था वो, है ना. तो ऐसा भी पेन नहीं होना चाहिए कि आपका फ्लो ही टूट जाए. तो आप पहले से ही देख लीजिएगा कि कौन सा पेन है. हमने एक सेशन अटेंड किया था, या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, उसमें उन्होंने शेयर किया था कि ब्लैक से नहीं लिखना है. ओके. सारी ब्लेसिंग्स या कुछ भी ये जो क्रिएटिविटी का काम होता है, ये जो क्रिएशन का काम होता है, उसको रेड से करना चाहिए. तो आप रेड से लिखिए तो बहुत अच्छा है. ड्रीम लिस्ट आपको अपने रेड से ही लिखनी है. ओके. बिकॉज इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. हाँ, तो आप हमारे कल्चर में तो ये है ही कि रेड शुभ होता है. कुछ भी आप
भगवान जी की कुछ भी लिखते हो तो उसको रेड से लिखते हो, या आप मंत्र भी पढ़ते हो तो रेड में प्रिंट होता है तो और अच्छा उसको माना जाता है। तो आप जब अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा कि आप उसको रेड से लिखिए। ब्लेसिंग्स जो आप लिख रहे हो आप रेड से लिख सकते हो, ब्लू से लिख सकते हो, लेकिन ब्लैक इस प्रोसेस में कहीं भी यूज मत करिएगा, ठीक है? डोंट यूज ब्लैक। या आप ब्लेसिंग्स ब्लू से लिखिए, रेड से लिखिए, ग्रीन से लिखिए, सबसे चलेगा, बट ब्लैक अवॉइड करिएगा। ओके, या सो थैंक यू। यस, someone had raised her hand. Saraswati ji. Ma'am, I'm sorry to interrupt. Yes. Please, but please don't say that black is not good because the book itself is typed in black. देखिए, this is what I'm saying. I attended a session, okay, and she is a lady who talks a lot about all these processes. Book तो black में ही है, ठीक है? Because generally people are not people in the Western culture are not following this too much, okay? आप Feng Shui वगैरह में भी देखोगे. This is my suggestion, okay? If you want, you can follow it. And see, I am doing this session on a voluntary basis. तो आप अगर follow करना चाहते हो तो आप कर लो. This is what I'm saying. I do it this way, and जो हम कर रहे हैं follow वही हम आपको बोलते हैं. Okay? If you want to, you can do it. If you want to do black, this is totally fine. Yeah. Thank you. प्रिया जी, हाँ, yes. आपने जैसे बोला कि बिकॉज लिखना है हर एक सेंटेंस में, तो वैसे अब हिंदी में लिखेंगे तो अब क्या आएगा? क्योंकि हम वो भी फॉर्मेट शेयर कर देंगे ग्रुप में। क्या करते हैं हम ग्रुप में ना, ये फॉर्मेट हम एक तो भेज देते हैं। आई नो वी आर वेरी बिजी, हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, तो हम उसका एक तो स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर देते हैं, हिंदी का भी शेयर कर देंगे। हिंदी में भी एक फॉर्मेट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसमें हर सेंटेंस में क्योंकि लिखना होता है, ठीक है? मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार, या हम भूल के देखिए क्या था, हाँ, उसमें क्योंकि है बिकॉज की जगह, हर सेंटेंस में आपको क्योंकि लिखना होगा। ओके, मैं काफी सालों से लिखती हूँ ग्रेटिट्यूड, हाँ 2-3 साल हो गए, पर हम लोग फॉर लिखते, बिकॉज नहीं लेते थे हम लोग। हाँ नहीं, फॉर तो देखिए पहले हमने आपसे कहा, हम भी यही करते थे, लेकिन एक बार एक सेशन में आश्विन मैम के संग हम लोगों ने जब डिस्कस किया तो उन्हीं ने बोला कि देखिए इतने दिन से हम लोग भी लिख रहे हैं, हर सेंटेंस में बिकॉज लिखा हुआ है। आई एम जस्ट सीइंग, हाँ आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन, हिंदी में भी यही लिखा है, मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि, उसमें हर में क्योंकि लिखा हुआ है। जस्ट 1 सेकेंड, या देखिए यहाँ लिखा है, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है क्योंकि, ठीक है? मैं इस चीज के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, यू नो, फिर रीजन दिया हुआ है। तो हर सेंटेंस में यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है। देखिए, तहे दिल से मैं आपको इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि, ओके? तो आप हिंदी में अगर बाकी चीज हिंदी में लिख रहे हो, आप क्योंकि भी लिख सकते हो, बिकॉज भी लिख सकते हो, फॉर देखिए आप लिख सकते हो, बट बुक में देखिए सब कुछ डिफरेंट है, बट एक वर्ड हर सेंटेंस में कॉमन है। सेम इन इंग्लिश, हर लाइन डिफरेंट है, बस उसमें एक वर्ड वो बिकॉज वो कॉमन है। सी आई एम फॉलोइंग, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, बट ऑफ कोर्स वी ऑल हैव अ फ्री ओन ओन फ्री विल, आपको जैसे लिखना आप वैसे लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। या yes, anyone else has a question or a clarification? Yes, Vivek? In the last session, we weren't having affirmations every day. So Yes. this is a very good thing. Even me, myself, and everyone will try and understand what are affirmations, and they will find out new affirmations every day. So Okay, it's a very good. Yes, thing. very good. Thank you, Vivek. I was just, listening to something, and उसमें बहुत simple से ही थे. Okay, I am blessed, I am healthy, I am wealthy, I am wise, I am successful, I am loved, I am loving, I am happy. मैंने बहुत ही सूदिंग था वो, and I thought yes, एक बार सुनने से नहीं होता है ना, उसको रोज बोलना चाहिए, रोज। अब सी लाइक आई स्टार्टेड डूइंग, सो आई थॉट इसीलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मेरा इधर उधर अभी सेट नहीं हो पा रहा है। ओके, सो आई सेट इट इन द मोशन, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस टुगेदर विल फॉलो इट। ओके, इफ यू हैव रिटन इट फॉर योरसेल्फ, दैट इज वंडरफुल। सोने के पहले आपको करोगे तो बहुत अच्छा होता है। दिन भर में भी अगर आप ग्रैटिट्यूड की, थैंक यू की माला कर रहे हो, वो तो है ही अमेजिंग। ये भी आप कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से। ओके, आई एम कॉन्फिडेंट, माने जो आप चाहते हो, जस्ट कीप रिपीटिंग दैट। या yes, so let's have some sharings. अच्छा, any question about the dreams? जो आप ड्रीम्स लिख रहे हो, हेल्थ के बारे में आपने क्या लिखा है? I want to understand. I think एक जन ने शेयर किया था कि हेल्थ में फिजिकली फिट, कैसे फिट होना है वो आपको लिखना है। someone else wants to share कि आपने क्या लिखा है, so that उससे दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि कैसे लिखना है, या
उसमें कुछ ट्वीक करना है, हल्का सा चेंज करना है, तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। अच्छा, ड्रीम्स कुछ जरूरी नहीं है कि आपको इतनी हाई फंडा टाइप की लिखनी है, नहीं, इट कैन बी एज सिंपल एज गेटिंग अ फोन। हाँ, आई एम सेइंग सिंपल बिकॉज सब लोग बहुत, हम लोग सोचते हैं ड्रीम मतलब कि मतलब नहीं क्या हो गया, कि घर ही चाहिए है, कि बच्चे की शादी चाहिए है, कि वही प्रमोशन चाहिए है, नहीं, जो आपका दिल करता है वो आपकी ड्रीम है, ठीक है। आपका ड्रीम, आपका दिल कर रहा है कि यस आपको रोज कुछ का खाना है, ठीक है, हाँ, तो आप वो लिख सकते हो। हाँ, इट्स लाइक व्हाटएवर यू वांट, दैट इज अ ड्रीम ना। आज मेरे को घर चाहिए, चलो 1 साल बाद मिलेगा, है ना, सजाएंगे, शिफ्ट होएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बीच में मेरी तो और भी ड्रीम्स एंड डिजायर्स है ना, डेली डेली वाली, आप वो भी लिख सकते हो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मेंटेन अ डायरी एंड राइट एवरी डे इन दैट, या जब आपके मन में आए राइट ओवर देयर, ओके। यू वांट टू स्पीक टू योर फ्रेंड एवरी वीक इसलिए बोल रहे हैं कि सब लोग बिजी रहते होंगे, चलो वो बिजी है। कितने बार आपने नोटिस किया है मैजिक बुक के पहले कितने बार महीनों हो जाते थे फ्रेंड से बात किए हुए, है ना। वो तो थैंक्स टू व्हाट्सएप हम लोग इतना ज्यादा इंटरैक्ट करने लगे हैं, बट बात किए हुए कितने दिन हो जाते थे। बट अब मेरा तो ऐसा हो गया, हर दूसरे दिन हम अपनी फ्रेंड्स को हम कॉल कर लेते हैं, ओके, इट हैज बिकम लाइक दिस। तो आप देखिए, कुछ भी आपका मन हो आप उसको ड्रीम में लिख सकते हो, या। सो थैंक यू। यस, सम शेयरिंग्स तो एग्जिस्टिंग हैं जो पार्टिसिपेंट्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं पहले के, प्लीज शेयर कि क्या क्या आपके लाइफ में हो रहा है, कैसे कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इंस्पायर अदर्स कि यस कितना मैजिक है ग्रैटिट्यूड में। या I have a question, Priyaji. yes. Hi, this is my first day. Hi. And I missed out yesterday's session. Okay. So what is it that I missed out? I mean, what is it that you're talking about dreams and all? Because I can definitely follow what the reading was. Yeah. And what we have to, start tomorrow and all that. But जो आप लोगों ने कल discuss किया होगा, can you just make a short presentation? It is very, I think it is that was a 1.5 hour session. उसको हम इतना भी crisp करके short करके नहीं बता पाएंगे. Either you read the chapter or you see the recording. Okay, I think that will be better. What you had to do was, it was just like a कैसे बताएं आपको, इट वॉज लाइक एक इंट्रो था कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। इट वॉज अबाउट दैट वी हैव नेवर थॉट व्हाट वी रियली वांट। ऑनेस्टली टेलिंग यू, जब हमने अपनी फर्स्ट दिन तो हमने लिखी ही नहीं थी ड्रीम्स क्या होती हैं, हमने लिखी ही नहीं थी, तो पता ही है क्या चाहिए हमको, है ना। बट इतना डिटेल में जैसे रोंडा बर्न ने कहा था, हमने कभी नहीं लिखा था। इनफैक्ट आई रोट इट लाइक आई विल शेयर इट, हमने जिस दिन भी लिखा था, आई विल शेयर इट व्हेन दैट डे कम्स, हमने उसी दिन लिखा था कि हाँ, अब तो जैसे बोलती है ना तलवार जब सर पे लटक रही होती, कितने सारे काम उसी टाइप के होते हैं ना। I had written my dreams like that, okay, कि अरे अब तो ड्रीम्स को पकाना ही है, that way. So it is telling us that what you want, you have to think about that and write that. That was what we discussed yesterday, and why we are, understanding about blessings, about gratitude. It was about that. Okay. I would like to add, Priya. I'm Tulsi. Yes. Yeah. Dreams, when I did first, it was a heavy word for me. What is dream? I said, क्या है, मेरे को कोई dream नहीं है. But today when you have told na ki it is as small as whatever you want right now, I mean as simple as a phone. So this is what जो चाहिए, छोटी से छोटी चीज भी वो ड्रीम है. So वो मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था, but yes, बहुत अच्छा. This is what you have explained it very nicely today. Thank you, Priya. Thank you Tulsi. I love you. Yes, yeah, so bilkul, thank you Tulsi. And I'm telling you again, Tulsi, I have to share this. She was my most reluctant participant from day one, okay, Tulsi, yeah. And I'm telling you, she has been here, अगर हमने 10 सेशंस किए हैं तो she has been there in 9.5 नहीं 8.5, एक बच्चों का था उसमें नहीं थी तुम, ठीक है। She has been there in 8.5 sessions, okay. She's been like, कि हर दिन रहती है, and I look at her and I smile. She's like that, okay. And she's been my childhood friends. School में हम लोग बस में school buddies. Yes, we were school buddies, okay. So it has been like that, yeah. So I'm so happy to see you here, and I'm sure बाकी जन भी जब शेयर करेंगे आपको समझ में आएगा कि कितना पावरफुल है ग्रैटिट्यूड, ओके। कुछ नहीं तो ना, कुछ नहीं, ये स्माइल तो डेफिनेटली आपके लाइफ में लेके आएगा, हैप्पीनेस डेफिनेटली लेके आएगा। अगर आपने अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई ना, तो बस स्माइल एंड हैप्पीनेस रह जाएगी। आप ड्रीम लिस्ट बनाओगे तभी वो चीजें आएंगी लाइफ में, एम आई राइट? Yes, very true. यस, तो ये पॉजिटिविटी डेफिनेटली लाएगा, हाँ। बट आपको और क्या चाहिए, है ना। हम लोग सिर्फ यहाँ पे 1 घंटा अगर यहाँ पे आके स्माइल कर रहे हैं तो नहीं, वी वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू अचीव और अट्रैक्ट व्हाट वी वॉन्ट। हाँ, हम बता रहे हैं, मेरे को 2 दिन से, मैंने 1 हफ्ते से जब से हमने बोला है कि हम ये सेशन करेंगे, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि हम क्या बताएं। आज तो ऐसा हुआ मैजिक, हाँ। एक क्लाइंट के पास गए थे,
एंड आई वाज थिंकिंग ना कि अभी थोड़ा सा ऐसा फेज चल रहा था, आई वाज थिंकिंग पेमेंट तो मांगना भूल ही गए, अब सडनली बोलेंगे पेमेंट दो तो कहाँ होता है। एंड आई वाज थिंकिंग ठीक है मैसेज कर देंगे नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, हम वहाँ गए, खुद वो आई, उन्होंने मेरे को पेमेंट दे दिया। लाइक हम तो सोच ही रहे थे आपको पेमेंट के लिए, देखा तुमने सोचा, मेरे को पता चल गया। वो लाइक सो हैप्पी एंड आई एम टेलिंग यू बिफोर दिस मैजिक बुक क्या होता था, हम एक हफ्ता सोचते थे, ओके सी आई एम नॉट अ सैलरीड पर्सन, ओके, एक हफ्ता हम सोचते थे कि क्लाइंट को मैसेज लिखना है, इतना पेमेंट मांगे, इतना काम हो गया। आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इट फॉर अ वीक, देन आई वुड सेंड अ मैसेज कि प्लीज अरेंज माय पेमेंट दिस मंथ, तो कभी क्लाइंट नेक्स्ट मंथ कर देता था, कोई दे देता था। Since the day I have started practicing gratitude for my clients, for my work, like the book is telling us, मेरा पेमेंट माने ऐसे होता है जैसे हमने आज बताया आपको, ऐसे होता है। Most of the times I get my payment, I write a message and within, माने जब क्लाइंट्स उसके बाद मिलते हैं मेरे को पेमेंट मिल जाता है। इट्स लाइक हैपनिंग लाइक मैजिक, ओके। इसको हम तो मेरे लाइफ में आई बीन वर्किंग फॉर द पास्ट आई थिंक 15-18 years एंड इट इज लाइक ऐसा मैजिक इसके पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो जैसे आपने सुना ही होगा ना, क्या होता था, लास्ट का पेमेंट अटक गया। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, थी हम ये जो आपके संग शेयर कर रहे होते हैं, इट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ओके। हम उसको कंप्लेनिंग की उससे नहीं बोल रहे हैं, तो इसको भी कंप्लेन बोला जाता है, बट अगर हम आपको बताएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो आपको धीरे धीरे देखना होगा कि आप क्या बात कर रहे हो। जैसे उन्होंने कहा ना कि हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, लाइन में खड़े होकर बोल रहे हैं, अरे इतनी लंबी लाइन है, आगे ही नहीं बढ़ रही है, सो गया है क्या काउंटर पे, बोलते हैं ना हम लोग ये, हाँ कैसी बकवास मूवी बनाई है, बकवास नहीं, एकदम नहीं बोलना है। ये सारे वर्ड्स आपको अपने डिक्शनरी से, अपने माइंड से हटा देने हैं। जो भी नेगेटिव वर्ड्स आप खुद नहीं सुनना चाहते हो अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में, उसको आपको मन से भूल जाना है, okay। We will gradually learn lots and lots more in the coming days, okay, but let's start with being grateful. Let's start by saying thank you. जितने बार आपको याद आए आपको thank you बोलना है, okay। So yes, Priya ji, can I share? yes please Pallavi ji, yeah, yes, कल परसों ही मैं सतारा में थी और मेरा लड़का पुणे में था, और आई वाज गोइंग टू कम यस्टरडे, लाइक कल मैं आने वाली थी, परसों के दिन रात में उसका एक्सीडेंट हो गया। लाइक ब्रेक फेल था गाड़ी का, तो और वो फास्ट नहीं था इसलिए थोड़ा सा बच गया और थोड़ा ही गिर गया, तो हाथों में थोड़ा सा ये हो गया, स्ट्रेन हो गया। बट उसने किसी को कॉल नहीं किया, मुझे कॉल करके सिर्फ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, बट डोंट वरी, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, फिर एक फ्रेंड को बुला लूंगी। इमीडिएटली जो हमारा होता है मैग्निफिसेंट आउटकम, मैजिक डस्ट, एवरीथिंग आई डिड, and first of all I got so relaxed immediately. I settled down within 2 minutes to myself, and then I tried to call my sister, then I gave a call to my husband. I even settled down him first and then I told him everything. Immediately within 5 minutes everyone was with him. He came properly at home. Immediately घर पे आने का ड्रेसिंग हो गया, दीदी का immediately मैसेज उसको चला गया, तुझे क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है, done. And yesterday when I was here, he was okay. Okay, wow, very nice Pallavi ji. Lots of magic dust on him. He's perfectly fit, fine and healthy. Okay, yeah. Thank you. Yeah, yes. एकदम ऐसे ही लगता है, जैसे ही ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं ना, ऐसा लगता है कि अच्छा ये क्यों होएगा, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब अपन ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान वहां से हट जाता है, वरना क्या होता है हम लोग उसी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये क्या हो गया है, वी कीप थिंकिंग। ऐसे बोलते हैं हम लोग तिल का पहाड़ बना देते हैं ना, दिस इज व्हाट वी डू, राई का पहाड़ बना देते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग बिफोर द मैजिक बुक केम इन आवर लाइव्स, है ना। अभी भी बनाते हैं लेकिन वो पहाड़ शायद नहीं बन पाता है, छोटा सा ही माउंट बन जाता है, एंड वी नो स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड, राइट। तो आप देखिएगा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो तिल या राई वो वैसे ही रह जाएगा, ओके। सो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट, एंड लेट्स कॉल इट अ नाइट एंड meet each other tomorrow, okay। So thank you everyone, and tomorrow we'll try and keep it within an hour, okay। So thank you Millie ji, hope your question was answered, Millie ji, yeah, okay, thank you, and please read the chapter and write down what you want, okay, yeah, okay, thank you everyone. Good night. And good night. Good night. Thank you. Thank you. Thank you.